The basic. Start with basic. The basic Basics. Okay, not a problem. See, recursion is an approach. Recursion is an approach in problem solving where a function calls itself with a smaller inputs. Which means, why do we need recursion? We need recursion in problem solving because recursion helps us to break a big complex problem into smaller problems by calling the same function again and again with a smaller inputs, right? And we will get to know with an example also. I'll try to, this is a 2-hour session, so I will try to solve at least 4 problems in this session, right? So what recursion does is, you have a big complex problem, and you have 2 ways to solve it. Every recursive problem can be solved using a recursion, and the same problem can also be solved using iteration, which means, suppose I'm just giving you one example. There's a question of finding factorial. Okay, say what is the factorial of 9? Okay, 9 factorial can be found. There are 2 approaches of finding the factorial. This can be solved using recursion, and this can be also solved using iteration, which means you can do a for loop, and in the for loop you can find what is the value of 9 factorial, right? So every problem which has a recursive solution also has an iterative solution. So what is the difference? Why are you going to use recursion and why you are going to use iteration, right? So in iteration, suppose you are finding the factorial of 9. So you already know that you have to run the for loop from I equals to 1 to I equals to 9, right? You already know, okay, this many times I have to run the loop, which is 9 times. And every time we have to find the product, save it, and run the loop. But there are times when you do not know. You do not know how many times the loop will run. In that case, iteration might not help. You can use while loop. Of course, you can use while loop. But at many times where there's certain questions which are very much becomes easier. It becomes easier if you solve it using recursion, right? So I will give you one more example. Okay, I will solve everything. I have not started solving any problem. I will solve every problem. One more example. There's an example of there's a subject I think you would have studied, which is called dynamic programming or binary tree. Yes or no? Something at least you must have heard. No, sir. Yeah, I heard, but not yet. I learned some about this. Okay. You have not studied. Okay, no problem. So you guys are in which semester, which year? प्रिंस म्यूट कर लो भाई. प्रिंस. Okay. Yes. Okay, no problem. Okay, see, the reason why I'm telling you about recursion is one more way why to choose recursion is recursion is the building block for solving problems of dynamic programming and binary trees, and even sometimes in graphs. Because without recursion, you will not be able to proceed ahead in dynamic programming and binary trees. Right. So today we will not cover them. We will only cover what is recursion and some fundamental problems of recursion. I will try to solve one question of binary tree to show you how recursion works. Right. These are separate topics in themselves. Okay, they are very big topics in themselves. So I will not cover these topics, but I will show you at least one problem of tree, but there's problem of recursion. Okay. Now. Okay, you already know what is recursion, like calling the same function by the function itself. Like there's a function, let's say const, let's name the function func. Okay, it is taking some input and it is taking an input as a number n, and it is calling itself. It is calling itself with a smaller number. So this is recursion. A function, we are calling the function. Okay,
we are calling the function with giving 9 as input. Okay, 9 as input. It will again call the same function again with a smaller input. Now it becomes n minus 1, which is 8. Now 8 will come here. Now 8 will come here. It will again call n minus 1. 8 minus 1 is 7. So it will keep calling. So this is a recursive call. A function is calling itself with a smaller input every time, so that the problem is broken into smaller parts. So this is part 1. Now this function is not accurate. Why this is not accurate? It does not have to any stop points. Exactly. So there one more thing. You have to find out something which is called as break condition, or in other terms, it is also called as base condition. Base condition and general case. Or so let's call this case only. General case and base case. Okay. Now, if you see here, why this function is not accurate? Because there is no end of the function, right? Because if we give the initial input 9, it will call the function with 9 input. Then again, it will call the function with 8 input. 9 minus 1, 8. It will keep on happening again and again, and it will crash your program, because I will get to the third part also. Okay, it will crash your program because every recursion or every function call has its own function stack. I will get to the third part later. Okay, now understand why this is not accurate. We need a breaking condition or a base case. Base case is a breaking condition. Whenever you are writing any recursive function, the first thing you should look for, what will be the base case of this function? When will the function, like, you need to get out of the function. You need a result. तुम्हें एक रिजल्ट मिल गया, तुम वो रिजल्ट रिटर्न करोगे ना. यहाँ तो कुछ रिटर्न नहीं होता, ये तो फंक्शन कॉल किए जा रहा है अपने आप को बार बार. सो यू नीड टू फाइंड आउट अ बेस केस जहां पे वो रिटर्न हो जाए. सो इट वुड बी लाइक दिस: इफ n is equal to 1, return n. तो अब यहाँ पे क्या होगा? What will happen here? You are calling this function, okay, and you are calling this function. Let's see the results here. Okay, so we are calling this function giving 9 as input. It will keep calling itself with 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. When n equals to 1, it will simply return, because it will simply return, and it will come back to the previous function stack, and the previous function stack is already implemented. There is nothing more to be implemented, so it will keep falling back. I will show you on a whiteboard also what it actually does, and at the end what it will return. Let's see. It is undefined, because we are actually not returning anything. It is not returning 1, or it is not returning n, because this is a question of the function stack. I will show you how it is implemented. So I will take one example. Let's start with an example. Okay, so this is the base case where you have to find, okay, यहाँ पे function break हो जाएगा. I have found a base case and it will return something, so that ये infinite नहीं चलता रहे. This is called the base case. What is the general case? General case is this function. What formula, what function you have to apply here, what you want according to your use case. अगर ये factorial होता तो कैसे होता? Suppose you have to find factorial of 9. So how will you find factorial of 9? So can you represent like something like this? 9 factorial, can you represent 9 factorial as 9 into 8 factorial? Right, you can represent, right? At least say yes or no. Yes. Right. Okay, now what you're doing here, you do not know the answer of 9 factorial, but you know that you can break this problem into a general case of n into n minus 1 factorial. Now you have broken this problem. You have called again the similar function with a smaller input, 8 factorial. Now you do not know 8 factorial also. So now you will again call the same function. Now it will become 9 into 8 into 7. 8 into 7 factorial. Right? Again, you will keep calling it. You do not know the answer of 7 factorial also. So you will keep calling it. So what you are making here, in a general case, what you're doing here is
n into minus function of n minus 1. This is called a general case. You are creating a general case here, right? So a general case will be put here, and till when this equation will keep on occurring, this equation will keep on occurring till this value becomes 1, because we already know if n is equal to 1, the answer of 1 factorial is 1 only, written from there, right? So we will write a function and we will show you how it works. Okay, we will start with the first problem of factorial only. Okay, so let's call this factorial. Okay, so this is a function. Sir, why it's written n is undefined, sir? Exactly. Okay, why is written n is undefined? Okay. Because this is not accurate. This is not it is not returning n factorial. Okay, if you want to see, let me show you. Okay. See, if you see this function, what it is doing, okay, you have there's a function stack. Okay, start with this. Okay, you have n equals to, let's say, 5. Okay, you have n equal to 5. Now you have n equal to 5. You call this function n equal to 5. It goes into this function. N is not equal to 1, it will not come here. It will call the same function again with n equals to 4. Okay, now when you call the function with n equal to 5, this function is not completed. It is calling another function. So on the same stack, it will put another function call. This has not, it has not exited. Yeah, it's not terminated now, right, sir? Exactly. So it will call another function n equals to 4. F4. Okay. Then it's not returning something, and it will keep calling it inside f of 3. Yep, it will keep calling till f of 1. So what will happen when f of 1 will be there? 1 is passed. Then it will return n. And what is the n for 1? Now n. Okay. Every function stack has its own set of variables. Here the value of n for this function stack is 1, right? So it will return 1. It will return 1. It will return 1, and it will return 1. And where will it fall back? This function is done. It is completed. It will return 1. It will get removed from the stack. Yes. Or it will fall back to f equal to 2. Okay. Because if you remember, we called f equal to 2. Now after f equal to 2, is there anything? Nothing. So f equal to 2 will also be removed. Yes, the job of f equal to 2 is done. It is not returning anything. If you see, f equal to 2 is not returning anything. Now it will come to f equal to 3. It is also not returning anything. If f equal to 3, here it was called, it is also not returning anything. So the job of f equal to 3 is also done. So at the end, nothing is returned by f equal to 5. So that's why it is returning undefined. Yes, that's why when you run this, it is not returning anything. So it's undefined. Yeah. Okay. Thank you, sir. So this is function stack. Okay. Every recursive function will keep calling another function stack, and till that time this one returns something. This is your case. This is the case from which you want an answer. So everything should return something to its previous stack, so that they will calculate some value, and in the end you will get back some answer. Here they are not returning anything, right? So you mean, sir, firstly, whenever we call the recursion, let's call all function inside the function, and after that it's once again come back to the yes. I will show you using an example. So let's see. So let's first write a factorial function, then I'll show you using this diagram. Okay. All right, sir. सर आई हैव अ क्वेश्चन. सर एक टाइम में कितनी बार रिपीटिवली फंक्शन कॉल हो सकता है वन एग्जीक्यूशन टाइम में?
मतलब स्टैक ओवरफ्लो की मैक्स लिमिट कितनी होती है? Okay. See, it will not give a stack overflow unless you have given a break condition. मतलब अगर तुम्हें break condition दे दिया है, एक बेस केस जो मैंने बोला था यस सर। कि फंक्शन एक जगह तो ब्रेक होगा, वो इन्फिनाइट चलता रहेगा, तो वो इट विल लीड टू क्रैश, वो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या फिर वो उसकी फंक्शन ओवरफ्लो हो जाएगी, फंक्शन स्टैक। नहीं Right, सर, क्योंकि उसमें यस सर सर व्हाट आई एम सेइंग, लाइक आप जैसे फैक्टोरियल कर रहे हैं 9 का, तो इट इज कॉलिंग 9 टाइम। ओके, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ 9, देन it will might be 10,000 or it will might be 75,000. Then I want to know about that. What is the max n value? Okay. So it is not dependent on function stack. See, it will be dependent on how much you are returning. Suppose you are starting with function f equals to 30. Let's suppose you are starting with f30. It will Yes, keep sir. on calling till f becomes 1. Yes sir. Right? Yes. Now it Yes. will return what it will. It will return 1. Now Yes, it will go to f2. Now Yes, sir. f2 in function stack, it will return 2 into whatever this has returned. This has returned 1. Okay, so this will return 2 to here. Now if the answer becomes more than the value which is stored as in an integer variable. Now this is JavaScript, no? So in JavaScript, what is the maximum size an integer can hold? You guys Might be 2 to the power 32 minus 1. I'm not pretty sure about that. Right. So if that value becomes more than that, then there's a problem. You will get inaccurate result because उसमें भी वो loop होता है, which means from 1 to 2 to the power 31 या 32 minus 1. Okay, अगर if your value whatever is getting returned at every step, अगर वो value बहुत बड़ा हो जाए, 2 1 3 dot बहुत बड़ा हो जाए, if it is more than that, it loops back to minus 2 to the power 31 minus 1, which means you will get inaccurate result. तुम्हें negative result आएगा. Okay sir. So this is not about function stack. Function stack तो उतना लंबा चल जाएगा. लेकिन this, whether your variable will be able to hold such big numbers or not, that will be a problem. But in JavaScript, I'm not sure because I'm not very familiar with JavaScript. I code in Java primarily. I'm just teaching you in JavaScript because the function of guys told me that you guys know for JavaScript better. Yes. Right. तो जावा एंड C++ में तो यही होता है. And there's one more thing. What I was telling, every recursion will have its memory. Like तुमने पढ़ा होगा एक time complexity Yes sir. और एक space complexity. Yes. If you run a loop from 1 to n, the time complexity will be O of And n. What will, if you run the loop from 1 to n, what will be the space complexity? If given you are not making use of any other data structure, it will be Constant O or one. O1. Yeah. Now this is different in case of recursion when you are solving a problem not using loop. But I told you, every problem can be solved using iteration or recursion. So if you are solving a problem using recursion, not iteration, suppose you're solving a problem of finding factorial using recursion. In this case, the time complexity of O of n, but space complexity will also be O of n. Why? Yes. They are n function stacks. Every function stack is going to take some memory. Okay, because there's a function, it has not exited. The function will keep getting stored in your memory till you get the answer, right? So the thing about recursion is recursion has it is a property, or you can say a drawback also. Function recursion has a space complexity which is not there in the iteration. Okay, if somebody asks you why you are solving this problem using recursion and not iteration, for loop क्यों नहीं लगा रहे हो तुम, recursion क्यों लगा रहे हो? तो recursion लगाने का तुम्हें, you know what is recursion. So what is the advantage or disadvantage of using recursion? Advantages you already know. You are going to break the problem into smaller problem, all those things. Disadvantages, one disadvantage is over for loop क्या हो सकता है? It takes memory.
बिकॉज फंक्शन कॉल्स टेक्स मेमोरी, ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है ना, ये स्टैक, ये फंक्शन कॉल का स्टैक है कि इसके बाद ये कॉल हुआ था, इसके बाद ये कॉल हुआ था, इसके बाद ये कॉल हुआ था। अनलेस ऊपर वाला लास्ट में जाके ब्रेक होता है, वो कुछ रिटर्न करता है, ये मेमोरी में स्टोर्ड रहता है। सो रिकर्शन टेक्स अप मेमोरी विच इज कॉल्ड फंक्शन कॉल स्टैक। ठीक है, फंक्शन कॉल स्टैक, सो इट टेक्स अप मेमोरी। तो यहाँ पे इसका एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा, इवन दो यू आर नॉट यूजिंग एनी अरे और एनी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ओके, लेट्स लीव दिस एंड गो come back to the problem of factorial. Sure, sir. Before execution, every function store in call stack. So that's why store capacity is used. And also for every function stack, वो जो value of n होगा which is only local to this stack, यहाँ पे n equal to 2 है, n equal to 2 बस इस function stack के लिए है। जब ये फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, इट विल रिटर्न समथिंग, यहाँ पे आएगा f equal to 3 पे, यहाँ पे n की वैल्यू n equal to 3 ही होगी। ओके, सो इट इज लोकल टू दिस फंक्शन। यहाँ पे जो भी तुम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे तुम जो भी वेरिएबल या कुछ भी क्रिएट करोगे, इट विल बी लोकल टू दैट फंक्शन। ठीक है, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा अभी तुम देखोगे तो। ओके, सर अगर हम n की जगह पे मतलब नंबर, डायरेक्ट नंबर ना भेज के एरे भेजते हैं तो फिर तो वो n स्क्वायर हो जाएगी टाइम्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यस यस बिल्कुल। ओके नहीं, n स्क्वायर देखो, इस एक सेकंड कॉल आ रहा है, एक सेकंड। पहले बच्चे तेल को मारेंगे। करुण यार बंद कर ले यार माइक। Okay, hello. So, okay, I got a call. Okay, so, okay, some of you asked कि अगर फंक्शन में अगर एरे भेज दें तो, हेलो, Yes, sir. सर यस सर। Yes, sir. राइट, अगर फंक्शन में एरे, सो दिस इज अ केस ऑफ लाइक, ये केस हम लोग जनरली नहीं करते हैं, फंक्शन में एरे नहीं भेजते हैं जनरली, क्योंकि वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बट ये जो मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओनली फॉर, ये जो मैं बता रहा था वो ऐड हो जाएगी, ये ओनली फॉर फंक्शन कॉल है। ये जो स्टैक ले रहा है, स्टैक ऑफ साइज n, अगर ये n साइज का स्टैक ले रहा है, n इक्वल टू 5 से लेके 1 तक, तब ये O ऑफ n हुई। ठीक है, अब तुम इस फंक्शन स्टैक में अगर इंटरनली अगर तुम कोई और अपना अरे क्रिएट कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगी, वो इसकी नहीं होगी। ये जो O ऑफ n मैं बता रहा हूँ, वो O ऑफ n सिर्फ ये फंक्शन स्टैक का साइज बता रहा हूँ, बिकॉज स्टैक विल बी ऑफ द साइज n। ठीक है, अगर वो n की साइज है तो स्पेस कितनी लेगी, O ऑफ n लेगी, राइट। सो अगर तुम स्टैक के अंदर कोई और डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, तब उसकी साइज तुम्हें और अलग से ऐड करनी होगी। ठीक है, Yes, sir. so this becomes very like inefficient way of solving problem, so we never generally, unless अगर वो dynamic programming है, तो we never pass an array in a recursive function generally, but कभी कभी फंक्शन में पास करनी पड़ती है, तब उस समय उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। ठीक है सर, इस कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइज कर दीजिए प्लीज। किसको? हाँ सर, अभी जो आप बता रहे थे लाइक स्टैक ओवरफ्लो व्हाटएवर इट इज। ओके, सी
अब तुम्हें ये वाली केस देखो, ये वाली केस में तुमने n इक्वल टू फंक्शन कॉल किया विथ इनपुट 5। सर ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट सर अभी जो क्वेश्चन किया था ना सर उसमें क्या? बोलो बोलो। एक्चुअली सर अरे वाला पूछ रहा है सर। यस सर। क्या कौन सी वाली चीज दोबारा बतानी है ये बता दो यार, कौन सी वाली चीज बोल रहे हो? यदि सर इनपुट में सर- एरे जाएगा आइटरेशन में, ओके व्हाट ओके ठीक है। सो अगर तुम इनपुट में अरे भेज रहे हो तो आर यू सी रिकर्शन का बेसिक प्रिंसिपल तो मैंने इसमें क्या बताया था कि टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जहां पे तुम उसे रिकर्सिवली तुम सेम फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे विद स्मॉलर इनपुट, और तुम अरे भेज रहे हो तो तुम स्मॉलर इनपुट भेज रहे हो क्या? सर हेलो हाँ सर, जो हमने ना पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें हम क्या हम्म। कर रहे थे, एरे को भेज रहे थे लेकिन एरे की हर बार लेंथ को कम कर दे रहे थे, एरे की लेंथ को तुम हर बार कैसे कम करते हो? स्लाइस करके या पॉप स्लाइस करके। से। ठीक है, तो उसके थ्रू हम उसकी लेंथ को हर बार कम कर रहे थे, तो इनपुट तो हर बार एरे कम होता जा रहा है, तो वो उसके लिए पूछ रहे हैं हम। ओके सी यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे द पर्पस जो मैंने बताया था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक, और इस स्टैक के अंदर तुम जो ये फंक्शन भेज रहे हो या फिर तुम जो अगर सॉरी तुम जो अरे भेज रहे हो, सो सपोज देयर इज एन अरे हियर, ठीक है, एक अरे भेज रहे हो ऑफ से लेंथ जो भी है, लेंथ ऑफ 5, यहाँ पे एक अरे है विच इज ऑफ लेंथ 4, ठीक है, तो इसकी टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ये पूछ रहे हो तुम? यस सर। ठीक है, ये ऊपर तक कॉल होता जाएगा विथ f इक्वल्स टू 1 अरे 1, ठीक है। नाउ अब एक चीज देखो कि जब भी तुम अरे भेजते हो वो अरे बिकम्स लोकल टू दिस फंक्शन स्टैक, this becomes local to this function stack, or every time this array is unique to every function stack, which means if we consider this case, generally ऐसा केस होता नहीं है जो तुम बोल रहे हो, लेकिन if we consider this case, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टैक की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of n, क्योंकि there is a function stack of size n and every stack has an array of size n, so it will be like n into O of n again, ठीक है। सो वो कुछ ऐसा 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 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा, ठीक है। सो द टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इन द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ओनली, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो 11:30 बज गए, अब प्रॉब्लम स्टार्ट कर ही देते हैं यार, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने हो पाते हैं, लेट्स सी। सो विल स्टार्ट विद फैक्टोरियल, ओके। सो suppose we have to find the factorial of 9, okay, so we are passing 9 here, okay, so this is a factorial function, it will take n, and what will be the base case, we have to find the base case, हमें 9 का factorial नहीं पता, but what we know is 9 factorial is equal to 9 into 8 factorial, right? So the general case will become, it will return something, because at the end you need answer now, so it will return something. What it will return? It will return n into, it will again call the same function like this. This is the general case, find base case and general case, this is the base case and general case, so it will call the same function again with smaller input. And what will be the base case? ये केस कब तक चलता रहेगा? 8 factorial, 7 factorial, 6 1 जब n equal to 1 हो जाएगा, we already know the answer, 1 factorial is 1, right? So and 1 factorial is 1, we already know this answer, so this is the base case जहां पे वो फंक्शन ब्रेक होगा। 1 सेकेंड, या फिर कौन कॉल कर रहा है?
चलो छोड़ो यार. हाँ, so you already know the base case because कब तक वो होगा कि वो 1 factorial तक होगा. If n equal to 1, you will simply return 1 and it will fall back to factorial of 2. And what is the factorial of 2? Factorial of 2 is 2 into 1 factorial. 1 factorial का आंसर हमें पता है, वो 1 रिटर्न हो चुका है. So 2 factorial will again return 2 into 1 factorial which is 2 into 1, 2. अब 3 factorial पे fall back होगा. अब 3 factorial का क्या था बेस केस? 3 into बेस केस नहीं, 3 factorial का जनरल केस क्या था? 3 into 2 factorial. 2 factorial just return 2. 2 factorial ने अभी 2 रिटर्न कर दिया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 into 2 factorial, 3 into 2, 6. अब वो ऐसे होके वो फॉल बैक करता रहेगा. लास्ट में 9 into 8 factorial का आंसर रिटर्न हो जाएगा. 9 into 8 factorial का आंसर जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ. मतलब ये वाली चीज क्लियर है? यस सर. मतलब किसी को भी क्लियर नहीं है तो बताओ, ये मैं उसको तुम्हें एक स्टैक के फॉर्म में दिखा के समझा दूंगा. ऑल क्लियर सर. ऑल क्लियर सर. ठीक है. सी, तो अब इसको ध्यान करके देख लेते हैं. हाँ, यहाँ पे तुम देख रहे हो जैसे मैंने बोला था कि एट एवरी स्टेज इन रिकर्शन कॉल यू आर कॉलिंग द सेम फंक्शन विथ वन स्मॉलर इनपुट. नॉट वन स्मॉलर, वहां पे अकॉर्डिंग टू यूज केस वो अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे वो स्मॉलर इनपुट हो रहा है क्योंकि n हम घटाते जा रहे हैं. क्योंकि हमें 9 फैक्टोरियल नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 into 8 फैक्टोरियल. तो एक बेस केस बनाओ जहां पे वो ब्रेक होगा, एक जनरल केस बनाओ और फंक्शन कॉल कर दो. सो लेट्स सी. ओके, सो दिस इज द आंसर. यू सी 9 फैक्टोरियल का आंसर ये है. ओके, नाउ ठीक है. अब और क्या कर सकते हैं इसमें? अब डू यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग लाइक इसको मैं मतलब ट्री के वे में समझा के दिखाऊं या फिर फंक्शन स्टैक में, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं? आई थिंक सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर. हेलो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर. सर ये कैसे काम कर रहा है, पर यहाँ पे कुछ क्लोजर वगैरह होता है क्या कि कोई नहीं होता? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. यस सर. ठीक है. सो दिस वाज फैक्टोरियल. अब किसी और फंक्शन पे आते हैं. सो कमेंट आउट कर देते हैं एक और फंक्शन पे. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. ओके, नाउ यू फाउंड, अगर हमने फैक्टोरियल फाइंड किया n का, हम लूप से फाइंड कर सकते हैं क्या n फैक्टोरियल? यस सर कर सकते. लूप से भी कर सकते हैं. सेम चीज हमें लूप लगानी है, फॉर लूप लगानी है और उससे भी आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो एवरी क्वेश्चन जो रिकर्शन से सॉल्व हो सकता है वो इटरेशन से भी सॉल्व हो सकता है. ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, वन मोर क्वेश्चन. ओके, क्या सॉल्व करें? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व पावर. ओके, सपोज यू आर गिवन दैट यू हैव टू फाइंड पावर ऑफ समथिंग, पावर ऑफ अ नंबर, विच मीन्स तुम्हें दिया हुआ है अ फंक्शन, अ नंबर, एक नंबर तुम्हें दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू 8. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 power 7? 8 power 7. ओके सर इसी क्वेश्चन में सर दिक्कत आ रहा था सर. किस क्वेश्चन में? इसमें? यस सर. निगेटिव वैल्यू के लिए क्या करेंगे? पावर निगेटिव में रहेगा तो इस टाइप में सर. ओके. यार जावा स्क्रिप्ट में क्या यूज होता है? देखो, मैं जावा में तुमको ये चीज बता सकता हूँ कि वहां पे तो हम वो चेंज कर देंगे, हम उसे लॉन्ग ले लेंगे. ओके, यहाँ पे क्या यूज होता है जावा स्क्रिप्ट में? आई डू नॉट नो मच. ठीक है, तो ये ट्राई टू सॉल्व. ओके, वो हम उसकी बेसिक केस सॉल्व करेंगे. ठीक है. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर रिकर्जन यूज क्यों करते हैं? मतलब मेन मोटो क्या है रिकर्जन यूज करने का? Obviously, I told you ना, recursion is a way of solving a problem. जब तुम्हें immediately नहीं पता हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो तुम उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हो स्मॉलर पीसेस में. ठीक है. तो जैसे ये वाला देखो, रिकर्सन बहुत ही फंडामेंटल चीज है. अगर तुम्हारा रिकर्सन अगर क्लियर हो गया ना, बाइनरी ट्री में बहुत ज्यादा यूज है. पूरी ट्री रिकर्सन पे बनती है. ट्री और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ में भी यूज होता है. हेलो. एक ट्री का क्वेश्चन करूंगा लास्ट में, अगर मतलब तुम्हें दिखाने के लिए कि बिना रिकर्शन के तुम सॉल्व ही नहीं कर सकोगे, ऐसा है. तो अभी देखा जाए तो सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से मतलब बोलते हैं सब कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो तो फिर
लूप से वगैरह आइटरेट करके। तो सर आपने बोला कि एवरी क्वेश्चन हम जैसे जो रिकर्जन से कर सकते हैं वो इटरेशन से कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों? See, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज्यादा ही आती है सर, है ना? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम है, मैंने क्या बोला, वो एक फंक्शन स्टैक की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा ले रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही ले रही है। ये फंक्शन कितनी बार रन होता है, n टाइम्स रन होता था, कितनी बार कॉल होता था, n टाइम्स। फॉर लूप तुम लगाओगे तो कितनी बार कॉल होगा? हाँ, वो भी इन टाइम होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी फंक्शन स्टैक की अपनी होती है, क्योंकि वो फंक्शन स्टैक एग्जिट नहीं होता जब तक उसे आंसर ना मिले। फंक्शन स्टैक ही ओनली होता है, स्टैक्स वाला नहीं होता रिकर्जन की टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होती है बहुत जगह, जैसे ग्राफ आप बनाना होता है तो वहाँ रिकर्जन की टाइम कम्प्लेक्सिटी काफी कम होती है। जस्ट लाइक यहाँ पे हम 2 फंक्शन एक साथ कॉल कर सकते हैं, तो इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी ज्यादा होती है। तो हम देखेंगे जब नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, तब देखेंगे। Okay, so we'll start with power of a number. You have to find कि 8 power 7 क्या है. Okay, so इसके लिए so let's start writing a function. Const power, एक function ले लेते हैं which is taking an input like the number, और let's call this part as so क्या बोले इसको x बोलते हैं या फिर let's call this x. Okay, it is taking 2 input. Okay, now 8 to the power of 7. अब मुझे 8 to the power of 7 नहीं पता है, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि 8 to the power of 1 क्या होगा, मुझे ये पता है, ये पता है ना 8 to the power of 1 क्या होगा, 8 to the power of 1 क्या होगा, 1 ये 8 ही होगा, 8 ही होगा। तो बेस केस हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें पता है वो हमारा बेस केस है, जहां पे वो फंक्शन आके रुक जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेस केस क्या हो जाएगा कि व्हेन x इक्वल्स टू 1, अगर x जब x से इक्वल टू 1 होगा तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, वो वही नंबर रिटर्न होगा x। ठीक है, अब जनरल केस क्या होगा, जनरल केस होगा कि हम उसे एक स्मॉलर नंबर, हमें 8 to the power 7 नहीं पता है, लेकिन हमें 8 to the power 6 तो पता है, 6 मतलब 6 में उसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 8 to the power 6 में कैसे ब्रेक करेंगे, 8 to the power like suppose 8 to the power 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 into 8 to the power 6। Yes sir। ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमें जनरल केस मिल गई कि हम इसे ब्रेक कर रहे हैं स्मॉलर प्रॉब्लम में। अब ये कब तक चलेगा, जब ये इसकी वैल्यू 1 ना हो जाए, इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो 8 to the power 1 क्या होता है, 8 वहां से रिटर्न कर देगा, 8 to the power 1 रिटर्न करेगा, वैसे फंक्शंस फॉल बैक होते रहेगा और अंतिम में इसका जो रिजल्ट आएगा वो 8 से मल्टीप्लाई होकर हमें मिल जाएगा। तो हमें एक बेस केस मिल गया कि कब तक कॉल होगा, जब तक ये 1 ना हो जाए, और ये तब तक कॉल होगा, और इसकी जनरल केस क्या होगी, जनरल केस क्या होगा, इसको हमने ब्रेक कर दिया है स्मॉल पार्ट्स में। जनरल केस होगा सेम नंबर इनटू फंक्शन कॉल ऑफ नंबर x minus 1। ठीक है, ओके सर। Call the function and comment the line number 60। ठीक है, तो ये आ गया। सो वेरीफाई करना है क्या, वो वेरीफाई कर लेते, यही होता है ना। दूसरा कोई स्मॉलर नंबर लेते हैं, पता चल जाएगा। 8 to the power 3 क्या होता है, ये सही आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता तुम समझ रहे हो, हमने एक बेस केस क्रिएट किया
जहां पे ब्रेक हो जाए, जो हमें पता हो कि अच्छा इसकी यही वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू हमें पता है कि अच्छा ठीक है ये पता है हमें, और एक जनरल केस, इस बड़े प्रॉब्लम में छोटे प्रॉब्लम में हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब इसके लिए सेम पावर फंक्शन रिकर्सिवली अपने पावर फंक्शन को कॉल कर रहा है विद स्मॉलर इनपुट, ठीक है, यस समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम करेंगे, चलो अभी तो टाइम है। ये वाली चीज किसी को समझ में नहीं आई तो बताओ, वैसे सिंपल सेम चीज थी जो हमने फैक्टोरियल में यूज किया था। सर इसमें मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया तो वहाँ पे खाली मतलब नंबर दिया था 16 और तो वहाँ पे दो मतलब पैरामीटर नहीं था, खाली एक पैरामीटर था, तो उसमें दो फंक्शन लिखना पड़ा था और फिर एक के अंदर और एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सर शायद n इक्वल्स टू समथिंग 16 था, तो 8 टू द पावर 4 मतलब ऐसा आउटपुट आएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है, वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर उसको हम इसी में एज केस में हैंडल कर सकते हैं, लाइक x इज इक्वल टू अनडिफाइंड और 0, देन वी हैव टू सेंड वो जो क्वेश्चन की तुम बात कर रहे हो बाकी लोगों को क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। हाँ सर जैसे आपने जो अभी क्वेश्चन बताया है तो सर 8 की पावर है ये सर अगर मैं कोई ऐसा नंबर लूँ 8 की पावर से डिवाइड हो या ना हो, वो कैसे पता करेंगे? हाँ वो सेम क्वेश्चन जिसका मैं वो बात कर रहा था, वो सेम क्वेश्चन आपसे आ रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन था कि फाइंड इफ द नंबर इज इन पावर ऑफ 2। इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 16 2 के पावर में है कि नहीं, है ना, इसे 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 24 2 के पावर में है कि नहीं? यस सर। यस क्या नहीं है भाई, 2 के पावर में कहाँ है 24? नहीं सर, सॉरी सर, नहीं है ना? यस सर, नहीं सर, फॉल्स है। तो ये सेम प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है यूजिंग रिकर्शन। हमें बताना है, हमें एक n दिया है, एक नंबर n, अब हमें बताना है कि इज दिस नंबर इन द पावर ऑफ 2 और नॉट। जैसे हम 16 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 16 को 2 द पावर 4 कह सकते हैं, 24 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओनली इन द पावर ऑफ 2, नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। ऐसे हम 32 कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो फाइंड करना है, हमें एक नंबर दिया हुआ है and we have to find whether the number is in the power of 2 or not, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगी? ट्रू, और इस केस में क्या रिटर्न होगा? फॉल्स, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। अब 2 मिनट लिए सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। बाकी लोगों के जो जिसने भी क्वेश्चन पढ़ के आया है उन्हें तो पता है, जिसने नहीं पढ़ के आया है सब लोग सोचो 2 मिनट के लिए कि इसकी बेस केस क्या बनेगी, इसकी और जनरल केस क्या बनेगी और कैसे सॉल्व होगा। सर बेस केस तो 2 होएगा और पावर बनेगा इसका n, इट मींस कि जो नंबर को हम डिवाइड करेंगे वही मॉडुलस लगा के से कर सकते हैं। यस कैसे लिखो चैट पे लिखो, चैट पे। सर ऐसा नहीं कर सकते कि हमें पावर को चेंज करना है, तो पावर को 2 की पावर 4 है तो 4 की जगह 3 2 1 होएगा, तभी पता चलेगा कि 2 की पावर से 16 डिवाइड है कि नहीं है। दो बेस केस ये कब तक करोगे भाई? देख ये हम करेंगे, जो गिवन नंबर है, बोलो गिवन नंबर इज 16 है तो 4 से डिवाइड। भाई 16 तो तुम्हें पता नहीं ना, तुम यहाँ पे जैसे किसी ने लिखा है, ईशान मंगल ने लिखा है n = 4, भाई वो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? n = 4 नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लो तुम्हें नंबर दिया हुआ 1024, राइट, सो ये वाली चीज तो नहीं चलेगी जिसने भी ये लिखा है। सर इसमें जनरल किस काम कर सकते हैं ना, हम रिटर्न करा देंगे n / 4, तो जितनी बार वो डिवाइड होगा उसकी पावर, अपन को पावर रिटर्न करनी है स्क्वायर रूट ऑफ
16 निकालना है एक्चुअली। नहीं नहीं, हमें सिर्फ ये बताना है, ट्रू फॉल्स में बताना है, ट्रू फॉल्स में कि वो ट्रू के पावर में है कि नहीं। तो सर मेरा सॉल्यूशन तो ये है, मैं आपको एक बार चैट में दे देता हूँ। सर इसमें हम सर 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे, मतलब पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। यदि वो नंबर आ गया तो मतलब वो पावर में है। हाँ हाँ, यदि तुम सही बोल रहे हो, सही जो बोल रहे हो। इसका तुम बेस केस लिख के बताओ चैट पे, फिर ये डिस्कस करते हैं, बेस केस और वो जनरल केस। तो बहुत अच्छे बढ़िया। n इक्वल टू 1 है तो ट्रू, ठीक है, ये तो ठीक है। कब तक ठीक, इसकी जनरल केस क्या होगी? ठीक है, तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे सर? आपका वो दिख रहा है 512 और जो भी एग्जांपल आपने लिखा हुआ है। एक मिनट रुको यार, तुम लोगों ने चैट पे क्या क्या लिखा है? n इक्वल टू 1 पे शुभम हाना माने n इक्वल टू 1 अगर है तो ट्रू हो जाएगा, अगर अगर n मॉड्यूलो 2 अगर 0 नहीं होता है तो फॉल्स। इफ n, भाई तुमने रिकर्सिव कॉल कहाँ किया है, किसे रिकर्सिव कॉल किया तुमने? सर इसको वेरिएबल लेके भी बना सकते हैं ना, जैसे एक ग्लोबल टाइप का वेरिएबल डाला, वैल्यू हमने 0 सेट कर दी, और उसके बाद से हम रिकर्सिव को कॉल करेंगे इसको, और मतलब n को चलाएंगे जब तक कि वेरिएबल का वैल्यू मतलब कि इस वैल्यू से बड़ा ना हो, मतलब जब तक छोटा है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ, ये कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पे वो क्या करना होगा, तुम्हें यहाँ पे करना होगा कि तुम स्टार्ट करो वहां से n इक्वल्स टू सबसे बेसिक 0 से कर सकते हैं। 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट करो। नहीं, 0 से भी करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आता है ना सर। अगर 2 टू द पावर 0 करें तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फॉल्स ही देना चाहिए इसको। ये एज केस हो सकता है सर, 1 से स्टार्ट करेंगे और जब तक चलेंगे जबकि उस वेरिएबल की वैल्यू इस वैल्यू से मतलब कि बड़ा ना हो। ठीक है, इसका एक बार कोड लिख के बताओ। कोड लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, मैं आता हूँ बाकी लोग के लिए। देखो तुम मतलब मोस्टली मैंने जितना भी मैं चैट पढ़ रहा हूँ, तुम सबका अप्रोच सही है, मतलब लेकिन बहुत लोगों ने, तुमने रिकर्सिव कॉल नहीं लिखा है, तुमने इफ एल्स का बेस कंडीशन लिख दिया है, किसी एक ने बस लिखा है, एक या दो ने। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका, क्योंकि देयर आर हाउ मेनी 168 पीपल हैं अभी इस मीटिंग में, तो द पर्पस की सबको समझ में आए, नॉट जस्ट कि 5-10 लोग को समझ में आया, तो वीडियो ही देख लोगे। ठीक है, तो पर्पस की सबको समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन इज क्लियर कि तुम्हें फाइंड करना, एक नंबर n दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड वेदर दिस नंबर इज इन दी पावर ऑफ 2 और नॉट। सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, 16 पावर ऑफ 2 में होता है 8 होता है, 32 होता है, 64 होता है। ठीक है, 24, 39, 42 ये सब नहीं होता है, तो उस केस में फॉल्स रिटर्न होगा, जिस केस में पावर ऑफ 2 है उस केस में ट्रू रिटर्न होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसकी फंक्शन लिखना चालू करते हैं। इज इन पावर ऑफ 2। ठीक है, और इट टेक्स अ नंबर, वो एक नंबर लेता है, एंड व्हाट दिस विल डू, वो एक नंबर लेगा। ठीक है, अब अगर वो नंबर, बेस केस क्या होगा, पहला तो बेस केस यही हो जाएगा, इफ द नंबर इक्वल्स टू 1, क्योंकि उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता 2 का पावर में। 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, जो इसके पहले कोई बोल रहा था। ठीक है, उससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। 2 का सबसे छोटा पावर क्या होगा, 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अगर वो 1 है तो हमें पता है, यस, सिंपली रिटर्न ट्रू।
लेकिन अगर इससे बड़ा है तो इसका एक जनरल फंक्शन लिखना पड़ेगा, रिकर्सिव फंक्शन। वो कैसे लिखेंगे? अब अगर वो 2 से थोड़ा, अगर वो नंबर 1 नहीं है, 1 से बड़ा कुछ भी है, और गिवन कि वो पॉजिटिव नंबर गिवन है, अब पॉजिटिव नंबर ही तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब वो नंबर 1 से बड़ा है, हमें ये पता है। अब हमें फाइंड करना है कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इसका एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। लेट्स कॉल दिस रिटर्न, और क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न अ रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन जिसमें हम वो नंबर पास करेंगे और हमें किसकी पावर फाइंड करनी है, 2 की पावर, तो हम 2 भी पास कर देंगे। ये तो मैं इसमें दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हर स्टेप पे हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन लिख लेते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। ये फंक्शन 2 चीजें ले रही है, ठीक है। एक ले रही है हमारी गिवन इनपुट नंबर, और एक ले रही है इसको क्या बोलूं, इसको बोले टेम्प पावर ऑफ 2, टेम्प पावर ऑफ 2, टेम्पररी वेरिएबल है ये, पावर ऑफ 2 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, जैसे हमें एक इनपुट दिया हुआ है 1 से बड़ा, मान लो दिया हुआ है 8, ठीक है। तो हम एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना स्टार्ट करेंगे, और हर केस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 से, ओके। 2 टू द पावर 2, 2 इंटू 2 4, क्या 8 4 के इक्वल है? नहीं, मतलब वो छोटा है, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 8, क्या 8 और 8 इक्वल है? हाँ, कंडीशन ब्रेक हो जाएगा और हमें आंसर मिल गया, हाँ इट इज इन द पावर, वो 2 के पावर में है। मतलब हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि हमें 2 की पावर फाइंड करनी है ना। तो देख लो, फंक्शन देख लो पहले। इसकी बेस केस हो जाएगी इफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू हमारा तो उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना हर बार। हाँ, देखो क्या हो रही है। तो टेम्पररी पावर ऑफ 2 है, तो टेम्पररी पावर ऑफ 2, अभी हमने फंक्शन कॉल किया था 8 और 2 के साथ। 8 और 2 इक्वल है? नहीं इक्वल है, ठीक है। 8 और 2 अगर इक्वल होती तो सिंपली रिटर्न ट्रू, एल्स वो इक्वल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, वो इक्वल नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या ये वाली नंबर कहीं बड़ी तो नहीं हो गई, मतलब इन द सेंस की लाइक दिस। एक एल्स इफ लिख लेते हैं। अगर ये नंबर बड़ी होगी, मतलब मान लो ये नंबर हमने 2 से मल्टीप्लाई करते गए, हम मान लो हमें इनपुट गिवन था 7, मान लो 7 हमारा नंबर है और हमें फाइंड करना है कि ये 2 के पावर में है कि नहीं, ठीक है। तो हमने 1 से स्टार्ट किया। अगर गिवन नंबर 1 है, हमें पता है 2 की पावर 0 हमेशा 2 के पावर में होता है, तो 2 हो गया। बेस केस रिटर्न नहीं पता है, अब एक अलग से रिकर्सिव कॉल लिखनी पड़ेगी। एक रिकर्सिव कॉल हमने लिखी, और इस रिकर्सिव कॉल में हम क्या कर रहे हैं, नंबर को पास कर रहे हैं 7, ये नंबर 7 है, और हमें किसका मल्टीपल फाइंड करना है, हमें 2 का मल्टीपल फाइंड करना है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तुमने देखा होगा कि हमने यहाँ पे हार्ड कोड क्यों कर दिया है 2, हमने 2 ही क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि 1 का बेस केस हमें पता है, 2 की पावर 0 पता है, तो अब 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और नंबर 7। अब क्या 2 और 7 इक्वल है? नहीं, अगर इक्वल होता तो बात ही खत्म, वो 2 की पावर में हो जाता और हम ट्रू रिटर्न कर देते। अब इक्वल नहीं है, क्या अगर ये नंबर बड़ा हो गया है, अगर बड़ा होगा तब आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट सिंपली रिटर्न फॉल्स। नहीं तो अब रिकर्सन कॉल होगा, एल्स रिटर्न। अब इसका जनरल केस, हम जनरल केस क्या होगा, जनरल केस हो जाएगा कि हमें ये नहीं पता है, लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं क्या, 7 और 2 इक्वल भी नहीं था, हमें इक्वल भी नहीं था, और 2 छोटा भी है, तो अब इसका रिकर्सिव कॉल करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 7 और 4 हो गया। अब ये दोनों कंपेयर करते हैं, दोनों सेम है? नहीं सेम है। क्या 4 इससे बड़ा है? नहीं, 4 से बड़ा भी नहीं है, तो एक और फंक्शन कॉल होगा 7 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 क्या होता है, 8। अब ये इससे बड़ा हो गया, जब ये नंबर इससे बड़ा हो गया तब तो बात ही रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा। फंक्शन कॉल में
हर केस में फॉल्स फॉल्स रिटर्न करते हुए लास्ट में यहाँ फॉल्स रिटर्न कर देगा और तुम्हारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास इनपुट गिवन होता 16, तो तुम स्टार्ट करते 16 2 से, 16 2 इक्वल है, नहीं इक्वल है। अब क्या करोगे नेक्स्ट केस में, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या 16 4 इक्वल है, नहीं इक्वल है। और क्या ये नंबर बड़ा हो गया अभी तक? तो अब इसको फिर से कॉल करेंगे। क्या 16 8 के इक्वल है, नहीं इक्वल है। क्या 8 बड़ा हो गया, अभी तक बड़ा नहीं हुआ। फिर से मल्टीप्लाई कॉल करेंगे 16, अब 8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 इक्वल है। हाँ, मतलब वो 2 के पावर में आ रहा है। अगर यहीं पे 15 होता तो फॉल्स हो जाता। 15 होता तब एक केस ऐसा आता जिस केस में ये नंबर 15 से बड़ा हो जाएगा हमारे गिवन नंबर से, उस केस में ब्रेक करके रिटर्न कर दो। तो इस केस में 2 ब्रेकिंग कंडीशन है, ठीक है। और रिकर्सिव कॉल क्या होगी? रिकर्सिव कॉल हो जाएगी विथ 1 स्मॉलर इनपुट। इस केस में क्या रिटर्न हो रहा है? इस केस में रिकर्सन कॉल हो रहा है विथ नंबर और इस जो पावर ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम 2 से हर केस में, 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, ठीक है, और रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इसको चला के एक बार देख लेते हैं ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ये हमारा मेन फंक्शन है क्योंकि ये इसको कॉल कर रहा है। 16 ओके, ये मिस हो गया। ट्रू दिया। अब उसको ट्राई करते हैं 44 फॉल्स। अब 512 ट्रू देना चाहिए, ट्रू, ठीक है, मतलब फंक्शन सही चल रहा है। अब बताओ कि इसमें से तुम्हें कोई ऐसा पार्ट जो समझ में नहीं आया हो। मैं फिर से समझाऊंगा सर, एक बार वापस स्टार्टिंग से समझा दो। ठीक है, इसको तुम चार्ट पे समझो ऐसे, देखो यार पेन का ऑप्शन कहाँ पे आता है? देखो ठीक है। अब सी यहाँ पे हो क्या रहा है? सी एक n गिवन है, n इक्वल्स टू, मान लो दोनों केस लेंगे, एक ट्रू वाला केस लेंगे, एक फॉल्स वाला केस लेंगे। तो पहला वाला केस लेते हैं ट्रू वाला, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं 32, n इक्वल टू 32, ये 2 के पावर में है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम 2 का सबसे छोटा पावर क्या होता है? 1, 2 का पावर 0 1, ठीक है। और वो 2 की पावर 1 से लेके वो मतलब इन्फिनाइट हो जाता रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहला बेस केस हमें क्या पता है कि अगर कोई नंबर 1 है और हमें पता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का पावर फाइंड करने का पर्पस नहीं है, ठीक है। हमें एक पॉजिटिव n नंबर मिला है, बताना है कि 2 के पावर में है कि नहीं, ठीक है। अब सबसे छोटा बेस केस अगर नंबर 1 है मतलब वो हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। अगर 1 है मतलब वो 2 के पावर 0 है, ठीक है, तो हमेशा ट्रू होगा, सीधा सा बात। अगर नंबर इक्वल टू 1 वो ट्रू, सिंपली ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। अब नंबर 1 नहीं है मतलब 1 से बड़ा है, तो अब क्या करना है? अब हम एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं रिकर्सिवली, जिसमें हम n को पास कर रहे हैं और स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। 2 या फिर इसको ऐसे देखो, एक फंक्शन कॉल हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 2 पैरामीटर भेज रहे हैं, n जो हमारा गिवन n है और 2 टू द पावर 1, क्योंकि अगर नंबर 1 से बड़ा है तो वो किसके डिविजन में हो सकता है? वो 2 टू द पावर 1 या उससे बड़ा के डिविजन में हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 टू द पावर 0 का केस हमने देख लिया है, वो n इक्वल्स टू ये नंबर इक्वल टू 1 वाला केस है, ठीक है। तो अब हम यहां से फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन लिखना चालू करेंगे। अब हम क्या करेंगे? हर बार इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे,
पहले भी हम देखेंगे कि ओके हमें जो नंबर मिला है 32, वो नंबर 32 और हमारा करेंट 2 की पावर 1 दोनों सेम है? सेम नहीं। अगर सेम हो जाता तो मतलब वो 2 की पावर में हो जाता किसी पावर में, ठीक है, वो नंबर सेम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 2 टू द पावर 2 क्या 32 के इक्वल है? इक्वल नहीं है। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक ये नंबर छोटा है इससे, जब तक ये नंबर इससे छोटा है जब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब 2 टू द पावर 3 हो गया। 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8। 8 और 32 इक्वल है? नहीं है। इक्वल है। तो क्या 8 बड़ा है? बड़ा भी नहीं है, तो उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो गया। अब 16 इसके इक्वल है? नहीं इक्वल है। क्या 16 इससे छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 टू द पावर 5 होगा, तुम देखो ब्रेकिंग कंडीशन आ गया, ठीक है, ब्रेक कंडीशन आ गया। 2 टू द पावर 5 क्या होता है? 32 इक्वल है, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो पूरे फंक्शन स्टैक में ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू ट्रू वो रिटर्न करते जाएगा। और सबसे लास्ट वाला फंक्शन स्टैक जहां हमने स्टार्ट किया था, फंक्शन कॉल स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था? इससे स्टार्ट किया था। इस वाले को फाइनली ट्रू मिल जाएगा और वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव केस देखो। नेगेटिव केस में क्या होता है? n इक्वल्स टू क्या लोगे? n इक्वल्स टू ले लो 18, ठीक है। अब इस केस में फॉल्स रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। अब सबसे पहले देख लो क्या ये नंबर 1 है, क्योंकि सबसे छोटा बेस केस 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। क्या नंबर 1 है? नहीं 1 नहीं है, ठीक है। अब अगर 1 होता तो सिंपली ट्रू रिटर्न कर देते। अब रिकर्शन कॉल करनी पड़ेगी, 2 की पावर 1 नहीं है। तो एक रिकर्सिव फंक्शन हमने लिखा जो हम लोग जनरल केस बोलते हैं। ये जनरल केस है। तो जनरल केस हमने क्या लिखा? हमने जनरल केस कुछ ऐसा लिखा है, n इंटू n कॉमा 2 टू द पावर ऑफ 1 से हमने स्टार्ट किया है और हर बार ये इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इसको तुम m मान लो, और जहां पे स्टार्टिंग केस होगा m इक्वल्स टू 1, इसको तुम 1 मान लो। इससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब n क्या है? 18 और 2 टू द पावर हमने m इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है। अब ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। और ये से छोटा है, तो ठीक है, इसको बड़ा कर दो, m को 1 से बढ़ा दो, मतलब एक और 2 मल्टीप्लाई कर दो। 2 टू द पावर 2 4 हो गया। 4 और 18 इक्वल है? नहीं इक्वल है, ठीक है। अब अभी भी छोटा है ये, तो इसको ये कर दो। अब 8 और ये 18 इक्वल है? नहीं। अब इसको बड़ा कर दो। 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16। 16 और 18 इक्वल है? नहीं। तो एक और बड़ा करोगे तो 32 हो जाएगा। अभी 32 हो चुका, अब ये बड़ा है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है 2 के मल्टीपल में 32 से छोटा जो इसके इक्वल हो। मतलब बात ही खत्म, फॉल्स रिटर्न होगा। मतलब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नंबर बड़ा हो चुका है 2 के मल्टीपल वाला। अब उसके सीरीज में 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 में कोई नंबर नहीं आता जो 18 है या फिर 18 से मतलब ये मतलब इससे छोटा है और वो 2 के पावर में है, वो हमने चेक कर लिया। अब सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दो। तो एग्जैक्ट सेम केस यहाँ पे हुआ है। इसको तुम 2 देखने की जगह 2 टू द पावर 1 देखो। तो एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुई है जिसमें हमने नंबर भेज दिया है, स्टार्टिंग केस 2 भेज दिया है, और इसको हमने नंबर बोला, और इस 2 को हमने क्या बोला है? इस 2 को हमने बोला है टेम्पररी पावर ऑफ 2, ठीक है। टेम्पररी पावर ऑफ 2 को हम हमेशा पहले चेक करें बेस कंडीशन, क्या वो नंबर के इक्वल है? अगर नंबर के इक्वल हो गया मतलब किसी मल्टीपल में आ गया है, 2 पावर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, पावर 5 हो गया, अगर आ गया तो ट्रू रिटर्न कर दो। अगर नहीं आया, अगर अगर नंबर ही बड़ा हो गया, मतलब हमने 2 का पावर 4 कर दिया और हमारा गिवन नंबर उससे छोटा है, मतलब आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, फॉल्स होगा। नहीं है ऐसा, तो जो भी हमारा 2 था उसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये जनरल केस हो गया, ठीक है। अब ये वाली समझ में आया था कि 37 लाइन में जो 2 दिया है सर आपने, उसमें मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे आपने जो 40 वाली लाइन में जो 10 पावर ऑफ 2 लिया है, ये मतलब रेफरेंस कर रहा है उस वेरिएबल से? हाँ वही वाली चीज है। नहीं, हर देखो मैंने क्या बोलता है, हर फंक्शन का जो वो होता है वो अपना होता है। मतलब हर फंक्शन का जो वेरिएबल होगा फंक्शन स्टैक का, वो उसका प्राइवेट टू दैट फंक्शन कॉल होगा। मतलब इसको ऐसे समझो, रुको या इसको मैं मिटा देता हूँ। तो
तुमने स्टार्टिंग में फंक्शन कॉल किया, तुमने n पास किया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो 2⁻1 पास किया है, ये वही वेरिएबल है, ये वाली वेरिएबल टेम्पररी पावर ऑफ 2। इसको x लिख दे और मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, इसको x लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 पास हुआ। अब हमें इसकी, अब ये दोनों की इक्वल नहीं था। अब मान लो हमने किया था 16 और 2 इक्वल नहीं था, तो हमें 2 गॉट इट सर, समझ गया, समझ गए ना। तो हम यहाँ पे 16 और 4 कॉल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस केस के लिए वो क्या है, इस केस के में जो हमने फंक्शन कॉल हुआ है 2 इंटू 2 यानी 4 कॉल हुआ है। तो फंक्शन कॉल क्या होगा, 16 और कॉमा 4। ऐसे कॉल होता जाएगा, एक टाइम आएगा जब 16 हो जाएगा, 16 फंक्शन कॉल वो इक्वल हो जाएगा, वो ब्रेक करके ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू रिटर्न करेगा, वो ट्रू इसको देगा, इसके पहले वाले को। यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा तो ये ट्रू इसको रिटर्न कर देगा, ये ट्रू इसको रिटर्न करेगा, लास्ट में ये इसको ट्रू रिटर्न कर देगा और तुम्हारा आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है सर, यस सर, ये क्लियर है? ओके सर, यस सर। ठीक है, अब रिकर्शन समझ में आ गई तुम्हें कि रिकर्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा है? इसमें सर एक तरह से दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं ना, एक रिकर्सिव का और एक चेक हो रहा है इज इन पावर ऑफ 2। हाँ, तो सिंगल फंक्शन से भी कर सकते हैं क्या इसको? तो सिंगल फंक्शन से भी कर सकते हैं, हाँ, सिंगल फंक्शन से भी कर सकते हैं। और सिंगल फंक्शन से करने के लिए तुम क्या करोगे? देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो ट्राई करते हैं सिंगल फंक्शन में करने का। इसको लिख देते हैं f2 लिखते हैं फंक्शन को, ठीक है। सेकंड इस केस में क्या करते हैं ना, ये फंक्शन कॉल करते हैं और स्टार्टिंग में ही 2 पास कर देते हैं, ठीक है। हमें 2 से देखनी है क्योंकि 2 का पावर है कि नहीं, ठीक है। फंक्शन कॉल कर दिया, हमें ये n गिवन है, n 312 है और ये हमेशा 2 पास करेंगे, ठीक है। n गिवन है, n इज इक्वल्स टू 512, ठीक है। और ये वाली फंक्शन कॉल करते हैं f2 फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है। ये नंबर है, ये x है। अब सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि अगर नंबर x के इक्वल है और जो नंबर है वो 1 हो। एक ही में चेक कर लो, 2 फंक्शन की जरूरत भी नहीं है, एक ही में चेक कर लो। अगर नंबर 1 है सिंपली ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। और कुछ चेंज करना पड़ेगा। सर डबल इक्वल टू आएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर सर। यस सर। अच्छा, इन द लाइन नंबर 52। हाँ, ठीक है। हमने ये चेक कर लिया, x इज 0, ठीक है, ठीक है। सो रन करके देखा, ठीक है। देखो ये भी ट्रू रिटर्न कर दिया। देखो ये कॉल नहीं हो रही है, f2 कॉल हो रही है। हमने एक ही रिकर्शन कॉल में मतलब वो दोनों की बेस कंडीशन ज्वाइन कर दी, क्योंकि अगर नंबर 1 है तो पक्का 2 के पावर में है, 2 के पावर 0 उससे छोटा होता ही नहीं है। तो सबसे छोटी बेस केस जो लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव बेस केस होती है, हम उसे बेस केस लेते हैं जो लीस्ट पॉसिबल केस है। तो 2 की पावर 0 से छोटी तो कुछ हो नहीं सकती है, 2 की पावर 0 क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे बेस केस 1 है, या फिर गिवन नंबर 2 के इक्वल हो जाए, वो भी एक बेस केस है। तो उस केस में ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ बार बार नंबर को और देखते जाओ कि वो इक्वल हो रही है कि नहीं, ठीक है। इसको एक और से ट्राई कर लेते हैं, एक नेगेटिव केस ले लेते हैं। नेगेटिव केस 43 2 के पावर में है नहीं, तो फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ठीक है। अब इसको दोनों कंबाइन कर लिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो 4th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व करें। सर लीड कोड पे सर एक 78 क्वेश्चन था सर, सबसेट ऑफ एरर्स, सर उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी जा रही थी, मैं कल ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में नेगेटिव के लिए चेक कर सकते हैं क्या? नेगेटिव पावर नहीं, नेगेटिव के लिए नहीं, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक तुम्हें पॉजिटिव नंबर दिया है, तुम्हें बताना वो 2 के पावर में है या नहीं, ठीक है।
वो गिवन है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि रिकर्शन कितना इंपॉर्टेंट है ट्रीज में, ठीक है। ओके, तो एक चीज बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड ट्री एटलीस्ट, तुम्हें बेसिक बाइनरी ट्री पता है? किसी ने नहीं? यस सर। मतलब नहीं सर, नहीं पढ़ा है। बाइनरी ट्री पढ़ी नहीं है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ी है सर। पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। कॉलेज में तो पढ़ा होगा। यस सर। हाँ थोड़ा नहीं सर, यहाँ पे डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं ना, नॉन आईटी स्टूडेंट्स ज्यादा है इसीलिए सर। सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं ऐसा सिंपली तुम्हें पढ़ाऊंगा। देखो, द रीजन आई वांट टू टीच बाइनरी ट्री का एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा बाइनरी ट्री का। द पर्पस इज रिकर्शन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ट्री ट्रैवर्सल, एनी तुम डीएफएस बीएफएस ट्री का प्रॉब्लम हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, हर जगह रिकर्शन वो है, मतलब फंडामेंटल है। इसलिए एक प्रॉब्लम है सर अभी तक तो लिंक लिस्ट ही नहीं हुआ, तो डायनेमिक प्रोग्राम तो नहीं होगा। अब सिंपल एरे के बेस पर देखो, एरे वाले क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें ये फंडामेंटल चीजें पता चल गई। मैं नेक्स्ट क्लास में एक एरे वाले एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। लीड कोड का भी कोई क्वेश्चन बोलोगे वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। बाइनरी ट्री वाले क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ ना कि तुम्हारा माइंड ओपन रहे कि रिकर्शन बाइनरी ट्री में कहाँ पे लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, अभी बाइनरी ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ सर, रेफरेंस के लिए सही रहेगा। एक क्वेश्चन बाइनरी ट्री का बताऊंगा जिसमें तुम्हें ये दिखेगा कि रिकर्शन यूज होता है। थोड़ा आइडिया लग जाएगा सर कैसे काम फ्लो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर अ ट्री। एक बाइनरी ट्री बनाते हैं। बाइनरी ट्री में पता है बाइनरी ट्री इज लाइक हर नोड के चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका राइट लेफ्ट चाइल्ड नहीं, इसका सिर्फ राइट चाइल्ड है। ठीक है, अब ये एक सिंपल बाइनरी ट्री है। ओके, अब दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है इज कॉल्ड रूट नोड। ठीक है, मैं ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक बताऊंगा कि यहाँ पे रिकर्सन करके ट्री ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें ये वाली चीज क्लियर हो गई ना, तुम्हें ट्री पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अब तुम ट्री जाओगे और तुम्हें लगेगा कि ट्री अलग है रिकर्सन अलग है, ऐसा नहीं है। ट्री के ऑल क्वेश्चन रिकर्सन से सॉल्व होंगे। ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, दिस इज द रूट नोड। ठीक है, अब हर बाइनरी ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ। एवरी नोड विल हैव मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स, क्योंकि वो बाइनरी ट्री है। मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स, जैसे 1 का चाइल्ड क्या है 2 और 3 है, 2 का क्या है 4 और 5 है, 3 का एक ही चाइल्ड है 6। इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, 3 का। ठीक है, आई मीन सर एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो सकता है, यानी 0 हो सकता है और 1 और 2 हो सकता है। 2 चाइल्ड मतलब 2 नोड जो इससे कनेक्टेड हो। 2 लीफ नोड होने चाहिए। हाँ, लीफ नोड नहीं, लीफ नोड इसको बोलते हैं। हाँ, लीफ नोड इज अ नोड जिसके कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, 4 का कोई चाइल्ड नहीं है, यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद नल है। ठीक है, 2 चाइल्ड हो सकते हैं ना सर? हाँ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड होंगे हर नोड के मैक्सिमम। ठीक है, जैसे 1 का 2 चाइल्ड है ना, 2 and 3 नोड्स आर चाइल्ड ऑफ 1। ठीक है, वैसे ही 4 का कितना चाइल्ड है? एक भी चाइल्ड नहीं है, एक भी नहीं है, वहां पे खत्म हो गया ट्री। ठीक है, अब 3 का कितना चाइल्ड है? इस नोड का एक ही चाइल्ड है, इसका राइट वाला चाइल्ड है, लेफ्ट वाला चाइल्ड नहीं है। ठीक है, लेफ्ट वाला चाइल्ड भी हो सकता था लेकिन नहीं। ठीक है, मान लो यहाँ पे है 7। अब एक काम करते हैं, इसको मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ये आपने फास्ट जो चाइल्ड बनाया वहां पर लेफ्ट साइड पर जो चाइल्ड है उसका 2 रखा, 2 से जो 2 चाइल्ड हुआ उसके बाद 4 रखा, यहाँ पर 5 रखा। ऐसा कोई रूल है क्या, वो लेफ्ट साइड पर छोटा रहेगा हर टाइम? नहीं, वो अलग अलग ट्री में होता है। नहीं, बाइनरी ट्री में कोई रूल नहीं है। अभी तुम बहुत कुछ पढ़ोगे, बाइनरी ट्री का भी वेरिएशन होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन बाइनरी ट्री में कोई रूल नहीं है। बाइनरी ट्री का एक ही रूल है कि एवरी नोड विल हैव मैक्सिमम ऑफ 2 सब नोड्स और 2 चाइल्ड नोड्स। सिर्फ यही रूल है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, एक मिनट,
हाँ, क्वेश्चन ये है, यू हैव टू डू इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है ट्री का, इसलिए मैं अभी ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिखाऊंगा कि हाउ टू डू इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यूजिंग रिकर्सन। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब तुम लोगों ने ये टर्म सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा क्लास में, जो लोग कंप्यूटर साइंस और इसी के हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे रिकर्शन कैसे यूज होगा, अब मैं क्वेश्चन का पहले मतलब बता देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक नॉन ये CS ब्रांच वाले भी लोग हैं, राइट? सिविल, इलेक्ट्रिकल, बाकी मोस्टली नॉन CS है सर। ओके, ठीक है, ठीक है। सो द क्वेश्चन विच इज गिवन कि हाँ, एक ट्री दी हुई है, ठीक है, एक ट्री दी हुई है, एक बाइनरी ट्री है, हमें इस ट्री का ट्रैवर्सल करना है, मतलब ट्री में ट्रैवल करना है, मतलब एक नोड से दूसरे नोड में, और ट्रैवर्सल करना है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का क्या मतलब होता है? इन ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले नोड ट्रैवर्स होगी जो करंट नोड है, उसके बाद उसकी लेफ्ट नोड ट्रैवर्स होगी, उसकी लेफ्ट नोड उस नोड की लेफ्ट नोड ट्रैवर्स होगी, और उसके बाद उस नोड की राइट नोड ट्रैवर्स होगी। दिस इज कॉल्ड इन ऑर्डर, सॉरी दिस इज कॉल्ड प्री ऑर्डर। हाँ, इन ऑर्डर में क्या होता है? इन ऑर्डर में पहले चाइल्ड होगी सर। हाँ, एग्जैक्टली पहले लेफ्ट चाइल्ड होगी, मतलब ये वाली चीज होगी, फिर अपनी नोड होगी, ये नोड होगी, फिर उसकी राइट वाली नोड होगी। हमें ये ट्रैवर्स करना है, और जो ट्रैवर्सिंग में जो नंबर्स आते जाएंगे, मतलब जो नोड की वैल्यू आती जाएगी, वो हमें एक अरे में स्टोर करके रिटर्न कर देना है। हमें बस इतना करना है, और हमें ये कैसे करना है? ये हमें करना है यूजिंग रिकर्सन, ठीक है? यस सर। अब तुम्हें समझ में आया? देखो, मैं ऐसे समझा देता हूँ। इसको ऐसे समझो कि कैसे समझोगे? एक ट्री का क्लास बनाना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में तुमने क्लास पढ़ा है? जावास्क्रिप्ट में? नो सर। थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। नहीं सर, नहीं पढ़ा है। ओके, नहीं पढ़ा। सर थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दीजिए क्लास का। ठीक है, रुको। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जरूरी नहीं है कि तुम क्लास यूज करो, लेकिन तुम क्लास क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो लेट्स क्रिएट अ क्लास कॉल्ड BT नोड। एक क्लास है BT नोड। BT मतलब बाइनरी ट्री का नोड। एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ना तुम्हें ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? वो डेटा स्ट्रक्चर जो ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा, वो इसका एक इंस्टेंस होगा। इट विल बी एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। इसका एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कैसे क्रिएट होती है, ठीक है? ये तुमने पढ़ा है क्लास, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर, ये सब? मतलब थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है आइडिया। ठीक है, नहीं क्योंकि बाकी क्लास के भी, मतलब बाकी ब्रांच उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं पहले। तुम्हें इसका कोड चाहिए क्या इस पे चैट पे? दे दीजिए सर एक बार। ठीक है, रुको, मैं एक बार कर लेता हूँ, ये लास्ट में सारा कोड भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है? तुमने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा तो तुमने पढ़ा होगा कि जैसे जावा या C++ की क्लास का एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है। जब उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहला फंक्शन जो कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर ही होता है। अगर उसमें हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं तो इनिशियलाइज हो जाएगा उस वैल्यू से। यस सर। ठीक, अभी देखो, नहीं समझ, जब पूरा फंक्शन लिख जाएगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये नोड को देखो, ये नोड का क्या प्रॉपर्टी है? इस नोड का प्रॉपर्टी है कि इस नोड की एक वैल्यू होती है जो 1 है, और ये नोड पॉइंट करता है 2 और नोड को, क्योंकि ये दो जो इसके चाइल्ड हैं, ये क्या है? ये नोड ही तो है। तो जो भी हम वैल्यू पास करेंगे, दिस डॉट वैल्यू, वो उस नोड की वैल्यू हो जाएगी। और सर यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट पर और अदर्स लैंग्वेज पर ये क्लास का जरूरत क्यों पड़ा? हम लोग फंक्शन बहुत सारे टूल्स है, तो क्लास क्यों यूज करें? इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? देखो, तुम यू नीड अ डेटा स्ट्रक्चर जो ट्री को रिप्रेजेंट करे,
ठीक है, और तुम्हारे अकॉर्डिंग कस्टमाइजेबल भी हो, कि कल अगर तुम बाइनरी ट्री नहीं कर रहे हो, तुम एन नरी ट्री, एन नरी एक ट्री होती है, एन नरी जिसमें तुम जितना एन बोलोगे उतनी चाइल्ड नोड्स हो जाएंगी, मतलब एक नोड से 10 नोड निकल रही है उस, या फिर 3 नोड निकल रही है, ट्राइनरी है या क्वाड्रिनरी है। तो वैसी कोई इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे तुमने पढ़ा होगा मैप पढ़ा है तुमने, फिर तुमने पढ़ा होगा अरेज, ये सब डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है जो लैंग्वेज हमें दे रहा है। जैसे अरे हमें जावास्क्रिप्ट ही दे रहा है, अरे हमने दे दिया है, तुम किसी साइज का अरे बनाओ और पुश करो, पॉप करो, इंसर्ट करो, स्लाइस करो, जो करना है करो। ट्री के लिए हमें एक वेल डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर नहीं दिया है, तो ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक अपना डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, इसलिए हम क्लास बनाते हैं। अच्छा, इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी, यानी क्लास के थ्रू हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। क्लास के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो इस क्लास का इंस्टेंस होगा, इस क्लास के जैसा होगा। ये ब्लूप्रिंट है, क्लास डिफाइन करता है कि जो भी एक ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ओके ओके ओके, ठीक है, देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं लैंग्वेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लैंग्वेज क्लास होती, ये मतलब पर्पस है इस कॉल का रिकर्शन पढ़ाना। अगर कोई और क्लास चाहिए तो तुम मतलब ये कंपनी वाले को बोलना, अगर वो कोई और क्लास वो सेटअप करवाते हैं तो वहां मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए फोकस करो कि मैं फोकस करूंगा कि तुम्हें समझ में आ जाए, रिकर्सन यूज करके ट्री का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उसका तुम्हें बेसिक समझ में आ जाए, ताकि जब क्लास होगी ट्री वाली तो तुम्हें याद है कि अच्छा हाँ ये हमने पढ़ा था, ऐसे रिकर्सन यूज होती है ट्री में। ठीक है, अब हमने ट्री का एक वो बना दिया है, एक क्लास बना दिया है कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे ट्री का और कोई भी नोड बनाएंगे, जो वैल्यू देंगे उस नोड की वैल्यू हो जाएगी, लेफ्ट और राइट नल होगा, इनिशियली नल होगा, हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक ट्री बनाते हैं जिससे लिखते हैं रूट नोड। ठीक है, रूट नोड, इस नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और इसमें पास करते हैं 1। ठीक है, अब क्या हुआ, हम क्या करें, न्यू दिस क्लास का नेम। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस क्लास का, वी आर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास, और इसके कंस्ट्रक्टर में जो इसकी डिफॉल्ट फंक्शन होती है, इसके कंस्ट्रक्टर में हम 1 पास कर रहे हैं। मतलब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगी, इसकी ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू हमने पास की है उसकी लेफ्ट और राइट नोड क्या होगी, नल होगी। अभी नल है, मतलब क्या हुआ, ऐसा कुछ बन गया है। यार ठीक है, हाँ, तो अभी हमने क्या किया, हमने एक नोड बनाया है जिसकी वैल्यू 1 दे दी है, और लेफ्ट और राइट नोड क्या है, पॉइंट कर रहे हैं नल को, मतलब वो कुछ नहीं है, अभी नल है, अभी एक ही नोड है। तो अब क्या करेंगे, अब ये सेम रूट नोड को लेंगे, अभी ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिकर्सन पे आएंगे, इस ट्री का लेफ्ट जो पहले नल था उसमें कुछ इनिशियलाइज कर देंगे। उसमें क्या इनिशियलाइज करेंगे, एक नया नोड इनिशियलाइज करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका लेफ्ट नल था पहले, अब इसका लेफ्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट क्या था, अब क्या है, एक नया नोड है, जिस नोड की वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब इसका लेफ्ट अब 2 को पॉइंट कर रहा है, और ये 2 का लेफ्ट और राइट क्या है, नल है, क्योंकि बाकी दोनों नल पे सेट हो रही है। समझ में आ रहा है, इससे हम अभी ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यस, ऐसे करते करते हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सेम इस रूट नोड का राइट क्या था, नल था, तो उसको इनिशियलाइज कर देंगे एक नए नोड के साथ, उसको वैल्यू दे देंगे 3। ठीक है, तो अब ये 3 बन गया। अब इस 3 का लेफ्ट राइट, यानी सर इनिशियल जो नोड था 1 बोलकर जिसका अंदर वैल्यू था, उसी नोड के साथ लेफ्ट पर एक न्यू नोड ऐड हो गया क्या? हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ पर ये जो न्यू है, ये न्यू का काम क्या है? न्यू का ये दिस न्यू मीन्स वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास,
न्यू ओके ओके ये क्लास का नेम है, मतलब ये क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप बाइनरी ट्री नोड जिसमें हम वन पास कर रहे हैं। वन कंस्ट्रक्टर में पास होता है। अब कंस्ट्रक्टर क्या है, एकदम बेसिक लैंग्वेज का बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट या जावा हर जगह सेम चीज है। कंस्ट्रक्टर क्या है, जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है किसी भी क्लास का और अगर उस क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है तो हम डायरेक्टली क्लास नेम के साथ वन पैरामीटर पास कर देंगे, फंक्शन नेम पास करने का जरूरी नहीं है। इस क्लास में और भी फंक्शन हो सकता है। इस क्लास में एक फंक्शन हो सकता है फंक नेम का, जो कुछ वैल्यू लेता हो, कुछ कुछ करता हो, और उसका और कुछ कुछ मतलब ऐसे ही ये डॉट एक्स इक्वल टू वैल्यू मान लो। तो हमें फंक्शन कॉल करना पड़ता है ना फंक्शन का, कि इस क्लास का ये फंक्शन कॉल करो। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर हम खुद कॉल हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होती है, जब भी हम न्यू और क्लास नेम लिखते हैं ना। दिस मीन्स कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस क्लास का। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इफ कंस्ट्रक्टर कॉल खुद हो जाएगी सबसे पहले, और हो जाएगी, और हमने क्या पैरामीटर पास किया था, वन, तो इस कंस्ट्रक्टर को वन मिल जाता है। वन मिलता है तो यह क्या करती है, ये जो ऑब्जेक्ट बन रही है बीटी नोड टाइप की, इसकी वैल्यू में ये वैल्यू डाल देता है। इसकी वैल्यू वन हो गई, लेफ्ट और राइट नल हो गया, ठीक है, और वो नोड बन गई। तो पर्पस है कि हम अब एक बाइनरी ट्री बना लें। तो हम एक बाइनरी ट्री बना लें, तो ठीक है। तो हमने लेफ्ट बनाया, ठीक है, हाँ, रूट नोड था, वन था, वन था, ठीक है, उसका लेफ्ट नल था, तो लेफ्ट में हमने पॉइंट करा दिया कि ठीक है एक और नोड डाल दो जिसकी वैल्यू टू हो जाएगी। तो इसके लेफ्ट में एक नोड डाल दिया टू, जिसकी वैल्यू टू हो गई। अब सेम रूट नोड के राइट का, सेम रूट नोड का राइट जो पहले नल था, अब वो पॉइंट कर रहा है एक नोड को जिसकी वैल्यू थ्री है, ठीक है। अब एक बड़ा वैल्यू ट्री बनाते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, ठीक है। टेंशन मत लो, ये चीज बाइनरी ट्री में फिर से पढ़ाएंगे, मैं बस रिकर्शन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट का लेफ्ट मतलब इस रूट नोड का लेफ्ट और इसका भी लेफ्ट, इसका लेफ्ट, लेफ्ट का लेफ्ट में हम एक नया नोड पॉइंट कर रहे हैं, वो है फोर, मान लो विद द वैल्यू फोर, विद द वैल्यू फाइव, ठीक है। लेफ्ट का लेफ्ट में एक नोड बना देते हैं फोर नाम का, और नोड का लेफ्ट का राइट में एक नोड बना दे रहे हैं विद द वैल्यू फाइव, ठीक है। ये दिख रहा है? yes. ठीक है, ये इतना दिख रहा है। अब ट्री इतना ही रखते हैं, कंफ्यूज मत हो, इतना ही ट्री रखते हैं, बाकी छोड़ दो। तो हमारा ट्री बन गया है, एक ट्री का क्लास बन गया है, ट्री बन गया है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब क्वेश्चन में गिवन है लेट्स डू प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर करते हैं। अब चलो प्री ऑर्डर करते हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ गिवन बाइनरी ट्री यूजिंग रिकर्सन। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम्हारा बाइनरी ट्री बना हुआ है और तुम्हें एक फंक्शन लिखना है, और वो फंक्शन होगा ऐसा, तुम्हें एक फंक्शन लिखना है जिसमें तुम्हें रिकर्सन यूज करके प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, ठीक है। और प्री ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर मतलब तुम्हें प्री ऑर्डर में सेंस ऐसा हो जाता है कि पहले नोड होगा, मतलब ऐसा एक, हाँ, ये एक ट्री गिवन है, इस ट्री में तुम्हें स्टार्ट करना है यहां से, रूट नोड से। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रूट नोड, दिस इज कॉल्ड रूट। सब कुछ यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करना हो, तुम्हें ट्रैवर्सल करना है और एक अरे रिटर्न करनी है, अरे या फिर कुछ प्रिंट करना है। किस ऑर्डर में, क्वेश्चन में क्या है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है, प्री ऑर्डर का मतलब हुआ कि पहले नोड की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसकी लेफ्ट वैल्यू, फिर राइट वैल्यू। मतलब हम यहां पर आए, ट्री से स्टार्ट किए, वन से स्टार्ट किए, ओके। वन की इस नोड की वैल्यू क्या है, वन, तो अरे में वन आ गया। अब इसकी लेफ्ट नोड क्या है, टू, ठीक है। अब इसकी राइट नोड क्या है, थ्री, थ्री। अब इसकी लेफ्ट की लेफ्ट क्या है, फोर, और फिर इसकी राइट क्या है, फाइव, फाइव, ठीक है। सर ऐसे गलत नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? एक सेकंड रुक जाओ, वो मुझे भी लग रहा है।
1 2 4 हाँ, स्टार्ट कर दे रूट से 1। अब इसके लेफ्ट में आए, हाँ सॉरी रिकर्सन यूज करना है, हाँ इसके लेफ्ट में आए, इसकी लेफ्ट क्या है, इसकी लेफ्ट है 2, ठीक है। अब 2 का भी तो कोई लेफ्ट होगा, लेकिन 2 क्या है, 2 एक नोड है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अब 2 के लेफ्ट में आएंगे 4 होगा 5 होगा, 2 का लेफ्ट में आएंगे तो 4 होगा, तो 4 प्रिंट हो गया। अब 4 का लेफ्ट है क्या, कोई 4 का कोई लेफ्ट नहीं है, ठीक है। अब वापस 4 पे आए, अब 4 का कोई राइट है, 4 का कोई राइट भी नहीं है, अब ये वापस 2 पे आया। अब ये नोड हो चुका है। प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है कि हम नोड ट्रैवर्स करते हैं, करंट नोड, उसके बाद हम ट्रैवर्स करते हैं उसकी लेफ्ट नोड, और उसके बाद ट्रैवर्स करते हैं उसकी राइट नोड। प्री का ये मतलब है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 1 से स्टार्ट किया, नोड ट्रैवर्स किया, ठीक है, 1 ट्रैवर्स कर लिया। अब 1 का लेफ्ट क्या है, 2 भी एक नोड है, 2 खुद एक नोड है ना, ये रिकर्शन कॉल हो रही है, एक फंक्शन कॉल है। हम जब 2 पे तो 2 एक खुद एक नोड है, तो 2 ट्रैवर्स होगी, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब 2 के लेफ्ट में जाएंगे, 2 के लेफ्ट में, 2 का लेफ्ट 4 है तो 4 में आ गए तो 4 प्रिंट हो गया। अब 4 का कोई लेफ्ट नहीं है, अब 5 प्रिंट, ठीक है। अब वापस आएंगे, ठीक है, 4 तो प्रिंट हो चुका था, 4 का कोई लेफ्ट नहीं है, तो 4 का अब क्या होगा, 4 का लेफ्ट नहीं है, 4 प्रिंट हो चुका है, 4 का राइट पे जाएंगे, 4 का राइट क्या, 4 का राइट भी कोई नहीं है। अब ये वापस रिटर्न होगा रिकर्शन, इस पे आएगा 2 पे वापस। अब 2 प्रिंट हो चुका था, 2 का लेफ्ट भी हमने ट्रैवर्स कर लिया, अब 2 के राइट पे आएंगे, 2 हो चुका था, 2 का लेफ्ट ट्रैवर्स कर लिया, अब 2 के राइट पे आएंगे, 2 के राइट पे आए तो 5, तो इसके बाद 5 पे जाएंगे। अब 5 एक नोड है, अब 5 के भी लेफ्ट पे आएंगे, 5 का लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नल रिटर्न कर देगा, वापस आ जाएगा, राइट भी नहीं है। अब हमने 5 ट्रैवर्स कर लिया, 5 का लेफ्ट देख लिया, कुछ नहीं है, अब 5 का राइट में आएंगे, 5 का लेफ्ट भी कुछ नहीं है, वापस रिटर्न कर देगा। अब ये इसको रिटर्न करेगा, मतलब हमने 2 का नोड ट्रैवर्स कर लिया, 2 का ये पूरा लेफ्ट वाला ट्रैवर्स कर लिया, अब 2 का पूरा राइट वाला भी ट्रैवर्स कर लिया, क्योंकि 5 भी रिटर्न कर दिया। अब ये वापस 1 पे आएगा। अब 1 हो चुका था, अब 1 का पूरा लेफ्ट नोड हो चुका है, पूरा लेफ्ट वाला नोड, तो समझ रहे हो ना, 1 का पूरा ये लेफ्ट चाइल्ड हो चुका है। अब 1 के राइट में घुसेंगे, ठीक है, 1 के लेफ्ट में घुसे तो आया 3 नोड, ठीक है। तो हम पहले नोड पे ट्रैवर्स करते हैं तो 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लेफ्ट क्या है, अब नोड का लेफ्ट कुछ नहीं है, मतलब ये सिंपली रिटर्न कर देगा, 3 पे वापस आएगा। अब ये 3 पे वापस आएगा तो 3 का राइट पे जाना चाहेगा, क्योंकि नेक्स्ट राइट पे इसका, अब 3 का राइट भी कुछ नहीं है, तो ये वापस 3 पे आएगा और ये वापस रिटर्न कर देगा, तो ये अरे प्रिंट हो जाएगा फाइनली। ये होगा आंसर प्री ऑर्डर का, ठीक है। तो ये अरे हमें रिकर्सन यूज करके ये अरे प्रिंट करनी है कि इस ऑर्डर में प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होती है बाइनरी ट्री की, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई, इसी को भी उसमें लिखेंगे, कोड में लिखेंगे। यस सर समझ गए। नहीं, बाकी ब्रांच वाले को ये वाली चीज समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई मैं फिर से बताऊंगा, फिर कोड लिखेंगे, कोई कोड से बेटर अंडरस्टैंडिंग इस फोटो से ही आएगा। सर मतलब ये एरे रिटर्न करना है क्या, 1 2 4 5 3? या तो तुम एरे रिटर्न करो या तो तुम हर स्टेप पे प्रिंट करते जाओ। ओके ओके सर, बात एक ही है, खाली ये ऑर्डर मेंटेन होनी चाहिए कि इस ऑर्डर में ट्रैवर्सल हो रही है, ठीक है। मैंने क्लास बना के इसका ऑब्जेक्ट बनाया और फिर इसको प्रिंट कराया ना रूट नोड को, तो भी यही आ रहा है 1 2 4 5 3, मतलब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो तुम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हो? हाँ, अब भी वो उसी तरीके से आ रहा है 1 2 4 5 3। सर एक रिकर्सन से एरे प्रिंट करके एक बार दिखाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खाली ये बोलो इन ऑर्डर क्या होती है, ये समझ में आ गया ना, इन ऑर्डर में क्या करते हैं? कोड वाली चीज सर ये समझ में आया। बाकी लोग को, वो जितने भी 150 लोग हैं में, सर ये प्री ऑर्डर है ना? क्या ये प्री ऑर्डर है ना सर, इन ऑर्डर में? प्री का मतलब क्या हुआ? प्री ऑर्डर मतलब हुआ कि नोड को पहले करेंगे Yes. फिर राइट को करेंगे। मतलब जब भी हम जिस नोड पे जाएंगे ना, वो नोड को प्रिंट कर देंगे, फिर उसका लेफ्ट और राइट ट्रैवर्स करेंगे।
ठीक है? यस ठीक है, अब देखो, अब इसका कोड लिखना चालू करते हैं। ये फंक्शन का काम नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए यूज किया था। ठीक है, ठीक है, अब हमारी ट्री बन गई है। ये रूट नोड हमारे रूट नोड 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फंक्शन में हमेशा इनपुट में रूट नोड ही गिवन होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है। अब फंक्शन लिखते हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में रूट नोड पास होगी। तो इसको अभी नोड लिख देते हैं, क्योंकि वो रिकर्सिव कॉल होती जाएगी। ठीक है, अभी नोड लिख देते हैं। इसका दोनों टाइप का बता देते हैं, या तो अरे रिटर्न करे या तो प्रिंट करे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पास हो रही है वहां पे फंक्शन लिख ही देते हैं, फंक्शन कॉल। इसमें हम रूट नोड को पास कर रहे हैं। ठीक है, हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसमें हम रूट नोड को पास कर रहे हैं, ये रूट नोड। ठीक है, और ये वाली फंक्शन। अब फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना क्या था, हम जब भी किसी ट्री पे आते हैं, किसी नोड पे आते हैं, तो पहले उस नोड को प्रिंट कर देते हैं, फिर उसके लेफ्ट पे जाते हैं। तो सबसे पहले console.log कर दो उस नोड की वैल्यू। ठीक है, अब तुमने console.log कर दिया लेफ्ट नोड की वैल्यू, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। अब हम रिकर्सिव कॉल करेंगे इस नोड की लेफ्ट को, सेम फंक्शन कॉल करेंगे। इस बार जो वैल्यू भेजेंगे वो इस रूट नोड की लेफ्ट होगी, तो नोड डॉट लेफ्ट। ठीक है, अब जैसी नोड डॉट लेफ्ट आएगी, मतलब नोड डॉट लेफ्ट इस फंक्शन को कॉल करेगी जैसे, तो अब इसके लिए 2 नोड हो गया, तो अब ये 2 प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब फिर इस 2 का भी लेफ्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? नोड डॉट राइट, जब ये ट्रू कॉल हो गया, ये नोड की वैल्यू प्रिंट होगी, अब उस नोड का भी लेफ्ट कॉल हो जाएगा। अब और ये कब तक होता रहेगा, एक तुम्हें इसकी भी बेस कंडीशन देनी पड़ेगी। ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू नल ना हो जाए। क्योंकि हर केस मैंने क्या बोला, हर रिकर्सिव कॉल में एक बेस कंडीशन हो। मतलब मान लो हम इस 2 पे आए, 2 प्रिंट कर दिया, अब 2 के लेफ्ट पे गए, 4 प्रिंट कर दिया, अब इस 4 के लेफ्ट पे गए। अब 4 का लेफ्ट तो नल है, 4 का लेफ्ट चाइल्ड ही नहीं है, तो 4 का लेफ्ट नल है। तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, सिंपली कुछ प्रिंट नहीं होगा, रिटर्न कर जाएगा। तो एक बेस कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या है, वो बेस कंडीशन में चेक करनी है कि अगर नोड की वैल्यू नल है या नहीं। अगर नल है तो सिंपली रिटर्न कर दो, अगर नल नहीं है तो उस नोड की वैल्यू प्रिंट करो और उस नोड के लेफ्ट में जाओ फिर। ठीक है, ये बहुत छोटा सा कोड, ट्री का कोड बहुत छोटा होता है क्योंकि रिकर्शन से लिखा जाता है। ठीक है, बहुत छोटा कोड होता है। अब इसको देखते हैं कॉल करके ये सही चीज प्रिंट कर रही है कि नहीं। कुछ कमेंट आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 1 2 4 5 3 1 2 4 5 3 इस ऑर्डर में प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, मतलब कैसे ट्रैवर्स हो रही है, 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है, 4 पे आ रही है, फिर 5 पे आ रही है, उसके बाद फिर 3 पे आ रही है। ट्रैवर्सल ऐसे हो रही है। ठीक है, तो ये प्रिंट कर दिया। ये तुम्हें समझ में आ गया ये वाली चीज, या फिर कोड को मैं बताऊं दोबारा यहाँ पे क्या होता है। सर रिटर्न का 90 नंबर लाइन सर, थोड़ा सा रिटर्न वाला से, रिटर्न का मतलब पहले से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो इसको दोबारा से क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा ट्री था 1 1 का लेफ्ट 2, इसका ये 3 4, एक सेकंड, क्या क्या था? Excuse me, sir. हाँ, Once you're done, then share the code in the chat. अच्छा ठीक है जी सर। हाँ सर, एक डॉक फाइल करके उसके सेंड कर देंगे। डॉक फाइल मैं तुम्हें ये पूरा कोड ही चैट पे भेज दूंगा, या फिर बोलो पूरा कोड में अनकमेंट करके भेज दूंगा पूरा कोड।
नहीं सर, अगर डॉक करके भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर चार्ट में पूरा कोड नहीं आएगा सर, हाँ कभी इसलिए कभी रह जाता है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन पहले समझ लो, वो तो होता रहेगा, अभी टाइम है 15 मिनट है अभी अपने पास। ठीक है, 1 2 1 का लेफ्ट था 2, 1 का राइट था 3, फिर 2 का लेफ्ट था 4 और 2 का राइट था 5, 2 का राइट था 5। ठीक है, बाइनरी ट्री बन गया। अब मैंने क्या बोला था, जो भी रिकर्सिव फंक्शन होती है सब में एक बेस कंडीशन होता है कि जहां से उसे रिटर्न कर देना है, मतलब जहां पे वो ब्रेक हो रहा है कि ठीक है अब इसके बाद रिकर्शन कॉल नहीं होगी, अब इसके बाद फॉल बैक होगा, वो पीछे आएगा। मतलब प्री ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, प्री ऑर्डर में हमें नोड ट्रैवर्स करना है, ये ऑर्डर मेंटेन करनी है कि पहले नोड ट्रैवर्स करना है, फिर नोड का लेफ्ट ट्रैवर्स करना है। अब अगर नोड हो गया, नोड का लेफ्ट हो गया, फिर नोड का राइट ट्रैवर्स करना है, ये ऑर्डर मेंटेन करनी होती है। ये है क्वेश्चन तुम्हारा, और ये तुम्हें ट्रैवर्स करना है यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, तो अब स्टार्ट गिविंग क्या होती है, हमेशा गिवन होता है रूट नोड। तुम्हें ये 1 दे दिया गया फंक्शन में कि तुम एक फंक्शन लिखो जिसमें तुम्हें रूट नोड गिवन है कि एक रूट नोड, एक ट्री बनी हुई है, एक ट्री बनी हुई है, उस ट्री की रूट नोड तुम्हें गिवन है। ठीक है, तो उस ट्री की रूट नोड 1 गिवन है और उसके लेफ्ट और बाकी ट्री बनी हुई है। ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, रूट नोड से हमेशा। ठीक है, अब रूट नोड एक नोड है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट में आना है, तो इसके लेफ्ट में आए, ये रिकर्शन कॉल करेगा इसके लेफ्ट में, तो एक फंक्शन स्टैक ओपन हो गया। मतलब यहाँ पे रूट वाला था, यहाँ पे 1 का फंक्शन था, 1 का नोड अभी खुला ही हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है। 1 प्रिंट हुआ, 1 वाले ने 1 के लेफ्ट को कॉल किया, 1 का लेफ्ट क्या था 2, अब 2 वाला आ गया, अब 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 खुद एक नोड है, 2 प्रिंट हो गया। अब 2 के लेफ्ट में आएगा, ये 2 के लेफ्ट में आया, 2 का लेफ्ट 4 एक नोड है, 4 नोड है, तो इसके फंक्शन स्टैक अभी तक कोई खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, 4 पे आ गया, अब 4 प्रिंट हो गया। अब 4 का लेफ्ट नोड क्या है, नल है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकिंग कंडीशन होगी, इसलिए ब्रेकिंग कंडीशन कि अगर वो नोड ही नल हो जाए, हमने क्या किया, हमने 4 का लेफ्ट कॉल कर दिया। 4 का लेफ्ट क्या है, इस फंक्शन में हमने 4 का लेफ्ट कॉल किया, तो ये जो नोड आ रही है आर्गुमेंट में, ये नल है, क्योंकि 4 का लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम कंडीशन बेस कंडीशन सबसे पहले चेक कर लेंगे, अगर वो नल है तो कुछ नहीं करना है, सीधा वहां से वापस हो जाओ, रिटर्न, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, नो वैल्यू, ओनली रिटर्न। ठीक है, वो कह रहा है कि अच्छा ये नल है, ओके, अगर ये नल है तो कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ वापस चल जाओ 4 पे वापस। यहाँ पे नल वाली कॉल हुई थी, एक फंक्शन कॉल हुई थी जिसके साथ नल थी, तो नल वाले ने फाइनली कुछ रिटर्न किया जिसकी वैल्यू कुछ नहीं, उसने सिंपली रिटर्न कर दिया कि 4 हटाओ, ये नल है और कुछ रिटर्न नहीं करना है। तो वो इस पे आ गया और वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तुम देखोगे तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ओनली रिटर्न है। मतलब वो फंक्शन कॉल को बस टर्मिनेट कर रहा है कि हाँ मेरा काम खत्म हो गया, कुछ मुझे वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, बात खत्म हो गया। अब वो 4 पे आया, अब 4 पे आएगा तो हमने 4 प्रिंट करा दिया, हमने 4 का लेफ्ट देख लिया, अब नेक्स्ट क्या है, अब 4 का राइट देखेंगे। सेम फंक्शन कॉल होगी 4 के राइट के साथ, तो 4 के राइट पे गया, और 4 का राइट क्या था, 4 का राइट फिर से नल था, तो यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगी, फंक्शन ऑफ नल, और ये फंक्शन ऑफ नल फिर से एग्जिट होगी, क्योंकि फंक्शन ऑफ नल कुछ नहीं है, वापस होगी फिर से 4 पे आ जाएगा, वापस फिर से 4 पे आया। अब 4 वाले का काम खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है 4 को, 4 वाले का काम ही खत्म है, इसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, 4 वाले का काम खत्म हो गया। 4 वाले जब काम खत्म हुआ तो 4 एग्जिट, 4 का बात खत्म। अब 4 रिटर्न हो जाएगा फंक्शन कॉल स्टैक ऑफ 2 पे, 4 2 पे रिटर्न हुआ। ठीक है, अब 2 पे आया, अब 2 पे आया तो देखा कि 2 तो प्रिंट हो चुका है, मतलब हमने ये वाले काम कर दिए थे, 2 प्रिंट करवा दिया था, फिर हमने 2 का लेफ्ट भी घूम लिया पूरा, हमने 2 का लेफ्ट घूम लिया ना, अब हम 2 के राइट पे आएंगे, हमने ये दोनों काम कर लिए। अब 2 जो नोड था 2 डॉट राइट, इस पे आएंगे और ये फंक्शन कॉल करेंगे 2 डॉट राइट पे, तो 2 का राइट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे आया 5, अब 5 एक नोड है तो 5 प्रिंट हुआ। ठीक है, 5 प्रिंट हो गया, अब 5 प्रिंट हुआ, अब 5 प्रिंट हो गया, 5 के लेफ्ट में आएगा, 5 का लेफ्ट क्या था, नल, यहाँ पे 5 का f of 5 कॉल हो जाएगा, सॉरी f of 2 कॉल होगा पहले,
f(2) तो कॉल हो चुका था, अब f(5) कॉल हुआ, f(5) और f(5) किसको कॉल करेगा? f null को कॉल करेगा। रुको यार, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ है, ठीक है, इसको हटाओ, f(5), ये फंक्शन स्टैक अभी 5 का खुला हुआ है। अब 5 अपने लेफ्ट को कॉल किया, 5 का लेफ्ट क्या है? नल। अब नल तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, नल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सिंपली हमने नोड चेक कर लिया कि नल है ये, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली रिटर्न कर दो वहां से। तो हमने ये फंक्शन कॉल स्टैक हटाया, ऐसा काम खत्म हो गया। ये 5 पे फॉल बैक किया, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ये 5 अपने राइट पे आएगा, तो 5 का राइट क्या था? नल था, तो फिर से फंक्शन कॉल होगी, फंक्शन जिसमें नल एज आर्गुमेंट पास होगा। नल पे आया, उसमें देखा कर ये तो नल है, तो रिटर्न कर दो। ये बात खत्म, ये भी कट गया। ये वापस फॉल बैक करेगा 5 पे। अब 5 का काम खत्म हो गया, 5 प्रिंट हो चुकी है, 5 का लेफ्ट देख लिया हमने, 5 का राइट भी देख लिया हमने। अब 5 फॉल बैक करेगा वापस 2 पे, ठीक है। अब 2 पे आया, अब 2 का भी काम खत्म हो चुका है। कैसे? हमने 2 प्रिंट करा दिया था, हमने 2 का लेफ्ट वाला ट्री पूरा घूम लिया, हमने 2 का राइट वाला ट्री पूरा घूम लिया। अब 2 का भी काम खत्म। अब 2 का काम खत्म, 2 को हटा दिया, वापस ये फॉल करेगा 1 पे। 1 पे आया, अब 1 हमने प्रिंट करा दिया है, हमने 1 का लेफ्ट वाला पूरा ट्री घूम लिया है। अब 1 प्रिंट करा दिया, 1 का लेफ्ट ट्री घूम लिया, 1 का राइट वाला ट्री में घुसेंगे, तो 1 का राइट क्या है? 3 प्रिंट कराएगा, 3 प्रिंट कराया, फिर सेम चीज होगा, ये 3 प्रिंट कराएगा। अब 3 का लेफ्ट क्या है? 3 का लेफ्ट नहीं है, तो ये इसके फंक्शन स्टैक पे, इसकी फंक्शन स्टैक यहाँ पे f1 के बाद f3 हो जाएगी, f3 के बाद f null हो जाएगी। अगर इसका लेफ्ट कुछ नहीं है तो नल, इसका नल तो है नहीं, तो नल वो एग्जिट करेगा, तो ये वापस 3 पे आएगा। अब 3 का राइट पे आया, 3 का राइट पे आया, तो ये भी नल है, ये खाली है, यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये वापस आएगा 3 पे। अब 3 का भी काम खत्म, क्योंकि 3 के बाद कुछ नहीं है, वापस 1 पे आ जाएगा और तुम्हारा फंक्शन 1 वाला काम खत्म। अब पूरा स्टैक एम्प्टी है, तुम्हारा रिकर्शन फंक्शन खत्म हो गया। फाइनली तुम्हें ये ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा 1 2 4 5 3। ये दिख रहा है? प्री ऑर्डर, ठीक है। सर थोड़ा सा इसमें रूट नोड डिफाइन किया है पहले हमने, यहाँ पे ये देखो कैसे बनाते हैं ट्री। ये मतलब ट्री वाले सेक्शन में अगर क्लास मैं लूंगा तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, अभी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक क्लास बनाओ, क्योंकि ट्री के लिए एक वेल डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो डेटा स्ट्रक्चर हमें खुद बनानी होती है। तो हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास की ट्री की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। एक नोड से मतलब रखो, जब हम ट्री बनाते हैं ना तो एक नोड से मतलब रखो, पूरे ट्री को मत देखो। ये ट्री एक नोड बनाया, नोड को एक वैल्यू दी, और नोड पॉइंट करेगा एक लेफ्ट नोड को और एक राइट नोड को, क्योंकि बाइनरी ट्री है तो 2 नोड हो सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट को हमने नल पॉइंट करवा दिया कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड है ही नहीं, तो ये नोड बन गया 1। अब हम जो लेफ्ट था, जो नल था, उसमें कुछ वैल्यू डाल देंगे, वो वैल्यू डाल देंगे एक नया नोड जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ऐसे करते करते एक ट्री बन जाएगा। सर इन केस ऑफ अगर हमारे पास बहुत बड़ा ट्री बनाना हो, मान लो 50-60 एलिमेंट्स हो उसमें, तो फिर तो हमें कितना सारा लिखना होगा। एग्जैक्टली, तो वैसे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन जब आती है ना तुम्हारी ऑनलाइन एग्जाम में, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो लीड कोड टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें ट्री बनी भी होगी और तुम्हें बस ये फंक्शन लिखना है, जिसमें तुम्हें नोड खाली पास कर दिया जाएगा, तुम्हें ट्री नहीं बनाना है, तुम्हें बस ये फंक्शन लिखना है जिसमें तुम्हें रूट नोड पास हो रही है, जिसमें कंपाइलर पे टेस्ट होगा। नहीं तो अगर तुम्हारी इंटरव्यू है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पेन पेपर पे टेस्ट ले रहा है, या फिर एक क्लीन एडिटर जिसमें कोई वो नहीं है, पहले से ट्री नहीं बनी हुई है, उस केस में एक छोटा सा ट्री बना दो। ऐसा एक छोटा सा ट्री बना दो, बहुत बड़ी ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा छोटा सा ट्री बना दो और अपना प्रॉब्लम उसे समझा दो ऐसे कोड करके और चला के दिखा दो। क्योंकि एग्जैक्टली अगर तुम्हें ट्री बहुत बड़ी बनानी होगी तो उतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेन लॉजिक से मतलब है। छोटा सा ट्री बनाओ और मेन अपना लॉजिक समझाओ। तो अब तुम्हें समझ में आया रिकर्शन क्या कॉल हो रहा है, क्या कॉल हो रहा है, ट्री में कैसा यूज होता है। पूरी ट्री की सारी ट्रैवर्सल, सारा क्वेश्चन रिकर्शन से ही सॉल्व होगा। यस सर, अभी समझ रहा है थोड़ा। ठीक है सर, ये जो रिकर्शन से किया हम लोग उसको इटरेटिव मेथड से कैसे कर सकते हैं? फॉर लूप से तो शायद नहीं होगा ना ये तो।
फॉर लूप से नहीं, सबसे बेस्ट एफिशिएंट तरीका है ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना रिकर्शन से ही, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है जो बिना रिकर्शन का बनेगा ही नहीं। शायद ट्रैवर्सल इटरेटिवली हो भी जाए, लेकिन पर्पस है तुम्हारा यहाँ पर रिकर्शन समझना। और ट्री का क्वेश्चन में जो भी रिकर्शन लगेगा वो सारे रिकर्शन इसी टाइप के होंगे, जिसमें तुम्हें लेफ्ट ट्रैवर्स करना, तुम्हें देखना है कि अच्छा इस समय लेफ्ट का लेफ्ट क्या है, तो उसके फंक्शन स्टैक पे उस लेफ्ट का क्या वैल्यू होगा। वो ऐसे करते करते अगर तुम्हें रिकर्शन समझ में आ गया तो ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं अनकॉमेंट कर देता हूँ सारा रुको। ठीक है, और रुको, वर्ड तो है नहीं। सर हम अपने हिसाब से कितने भी नोट बना सकते हैं ना एक नोट। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ट्री तुम बना रहे हो ना, ट्री के तुम जो भी वैल्यू दो, जितने भी नोट देना है दो। देखो जस्ट लाइक वी आर सेटिंग लेफ्ट नोड, राइट नोड एज वेल एज मिडिल में भी एक नोड बना सकते हैं, राइट? मिडिल वाले देखो, ये बाइनरी ट्री है ना, बाइनरी ट्री में दो ही नोड होंगे ना, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। ये जो तुम देख रहे हो कि लेफ्ट का लेफ्ट है, मतलब रूट का लेफ्ट का लेफ्ट, रूट का क्या है, ये रूट है, इसका लेफ्ट, फिर इसका लेफ्ट ये होगा। तो तुम ट्री मत देखो, तुम एक नोड को देखो, तुम नोड पे ट्रैवर्स करते जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ये रूट नोड है, रूट नोड का लेफ्ट, रूट का राइट, फिर रूट का जो लेफ्ट हमने बनाया, जो ये वाली नोड थी 2, अब उसका भी तो कोई लेफ्ट राइट होगा, तो ये उसका लेफ्ट राइट है। यस सर। ट्राइनरी ट्री में हमारा 3 नोड होगा। मींस बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब है 2। यस सर। नोड होना चाहिए। तो यार इसको गूगल डॉक में दे दीजिए ना। गूगल डॉक में दे दो ना, चलो ठीक है। यस सर, गूगल डॉक का लिंक है। काय काय खा ले रहे अब, खा ले रहे। यार म्यूट पे हो जाओ जो भी हो। निर्मल म्यूट कर लो। ठीक है, जूम पे ये चैट पे पीडीएफ शेयर होती है अटैचमेंट में। सर वो लिंक डाल सकते हैं आप, गूगल डॉक्स का लिंक शेयर कर दीजिए, हम कर लेंगे। वैसे शेयर होती है कैसे पीडीएफ? ये लिंक खोलो, खुल रहा है, मैंने चैट पे भेजा है। सर लिंक नहीं आया। एक मिनट, ये लिंक खोलो। हाँ सर। हाँ सर एक्सेस बता रहा है। एक्सेस डिनाइड बता रहा है। हाँ प्राइवेट है, उसको पब्लिक करना पड़ेगा। अब खोलना। हाँ सर अभी विजिबल है। विजिबल है ना पूरा? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो रिकर्शन के लिए अब तो टाइम भी हो चुका 2 घंटे। एक क्वेश्चन तुम एज अ वो लिख लो, असाइनमेंट या जो भी, खुद से बनाना। तुम फिबोनाची ट्राई करना खुद से, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वो तो हो गया है सर। फिबोनाची चुका है, हो चुका है सर। कंप्लीट भी कर लो, ठीक, लीड कोड भी कर लो सर। ठीक है, ठीक है। तो सर पिछले क्लास में ना सर ने एक क्वेश्चन दिया था, तो वो हमने होमवर्क में कर लिया है। ओके ठीक है। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर दीजिए, वो डायनामिक प्रोग्राम के बारे में। भाई डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला चीज डायनामिक प्रोग्रामिंग में आएंगे वहां भी रिकर्शन यूज होगा। ओके ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
बाय सर। थैंक यू सर।